Am I audible to all of you? Bhupen ji? Yes, sir. Audible Okay, from your side. okay. Thank you. Myself, Swatantra Kumar Sahu, RA under IDP NHEP project, RBS KVV Gwalior. On behalf of RBS KVV and IDP NHEP, I welcome Honorable Vice Chancellor of our university, Professor S.K. Rao sir, our Dean Faculty of Agriculture, Dr. Deepak Hari Ranade sir, Director Research Services, Dr. S.K. Sharma sir, Director Extension Services, Dr. Y.P. Singh sir, Director Instructions, Dr. S.P.S. Tomar sir, Dean of Constituent College, Heads of Departments of Constituent Subjects, Faculty Members, PI of the project, Dr. S.K. Sharma sir, Co-PI, Dr. Akhilesh Singh sir, staff members, and dear participants. I welcome to all. As we know, today we have the lecture on deep learning for smart agriculture, the concept and tools. Now, I would like to invite our Honorable Vice Chancellor, Professor S.K. Rao sir, for opening and presidential remark. Honorable Vice Chancellor, sir. Swatantra, I think sir is busy in some another meeting in NABARD's workshop. So you may introduce the robotics firm and start the Okay, sir. program. Okay, sir. Before we starting the lecture, I just introduce our today's speaker, Mr. Bhupen Singh Thakurji. He is the Director of Robotonics Engineering Technology Private Limited, Indore, and his company Robotonics is exploring indefinitely in the innovation world of education services, and as technology services provider, it has conceptualized with a motive of spread of magic of technology among the students of all over the country. And the Mr. Bhupen sir organized more than 500 plus technical workshop in the well-defined Indian universities, and organize more than 100 technical training programs all over the India, and trained the more than 10,000 students, and successfully installed the industrial projects, more than 10 industrial projects. And he's completed his MTech in embedded system VLC design. And now a brief introduction of Mr. Bhupen sir. I would like to invite Mr. Bhupen sir for today's lecture. Bhupen ji, welcome. Thank you very much, Swatantra sir. This is our first time that we are going to organize this type of program in our SKVV University. And thank you very much, the university and Vice Chancellor sir and the team, that the team is going to organize this type of program. And welcome all participants. लास्ट टाइम जैसा मेरा आपसे डिस्कस हुआ था कि इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं. इसके पहले काफ़ी ऐसे कुछ मैं आपसे टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा. इट मीन्स जो करंट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रन हो रही हैं, सपोज दैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वायरलेस टेक्नोलॉजी, पीएलसी एंड ऑटोमेशन सिस्टम, ये जितनी भी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें इन सारी टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में भी काफी कुछ काम हो रहा है. लास्ट टाइम मेरा स्वतंत्र सर से डिस्कशन हुआ था कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे. वो प्रोडक्ट बेसिकली हम लोग ने सक्सेसफुली लॉन्च भी किया है अभी, और उस लाइव प्रोजेक्ट को हम आपके साथ डिस्कस भी करना चाहेंगे. पहला सेशन है, नेक्स्ट 15 डेज तक ये सेशन चलना है. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है. सेशन को कंडक्ट करने का रीजन, या सेशन में जो भी हम टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसका कंसर्न बेसिकली ये है जो एक्चुअली वी आर डूइंग इन इंडस्ट्री, और वो आपको किस तरीके से हम प्रपोज करें. सपोज दैट हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम कर रहे हैं,
सपोज दैट हम लोग वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उनके बारे में एक्चुअली आपको बता सके। जैसे ही सेशन हमारे आगे बढ़ेगा तो सेशन के बिटवीन हम आपको कुछ वीडियो शेयर करेंगे ऑन ग्रुप, और कुछ ऐसी चीजें रहेंगी लाइक कुछ आपको लेक्चर्स देखना है या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करना है। यदि इस सेशन के लिए हमें बहुत डेप्थ में जाना है तो हमारे लिए काफी ये चीज अच्छी रहेगी कि हम इस सेशन को प्रॉपरली वाया वीडियो और वाया डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कंटिन्यू करें। स्वतंत्र सर से एक और डिस्कशन हुआ था मेरा लास्ट टाइम कि ड्यूरिंग द सेशन सपोज दैट हम लोग 3 to 5 आवर्स का 2 to 3 आवर्स का ये सेशन रख रहे हैं 3 to 5 के बीच में। इसके बाद हमें कहीं ऐसा लगता है कि कोई डाउट सेशन रखना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में मोर एंड मोर डिस्कशन करना है। मोर एंड मोर डिस्कशन का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 15 डेज में हम आपको डीप लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग या फिर एआई या आईओटी के बारे में बहुत ज्यादा बता सकें। सारी चीजें डिपेंड्स करती हैं आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपका इंटरेस्ट कितना है। और हम कोई भी यदि प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में भी हमें यदि डिटेल में समझना है तो इट विल टेक नियर अबाउट 3 to 4 days और ओनली द प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेनली कंसर्न यही है। अभी जैसे हम लोग का हमारे यहाँ जहाँ ये कैंपस में हम लोग हैं दैट इज आईटी पार्क। आईटी पार्क के बाजू में एक सोयाबीन प्लांट है, आईसीएमआर कुछ ऐसा कुछ नाम है, आईसीएमआर। वहां पे हम लोग ने जब अपना प्रोडक्ट टेस्ट किया था तो वहाँ के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करके हमने क्रॉप पर, सोयाबीन क्रॉप पर और सोयाबीन डिसीज पर लगभग 1 से 2 महीने तक स्टडी की थी। और साथ ही साथ उन्होंने हमें गाइड किया था कि हमें अपनी डिवाइस को किस तरीके से अप्लाई करना है। ऐसी भी चीजें हुई हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आपसे भी कुछ हमें सजेशंस मिल सकते हैं, कुछ गाइडेंस मिल सकता है। तो आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट मैं एक्टिवली चाहता हूँ। यदि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो हम चाहते हैं कि उस पर भी यदि क्वेश्चन क्वेरीज आए तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मोर एंड मोर हम लोग एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और जितना हम लोग इसको डिस्कशन को लेके चलेंगे उतना हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। सेशन स्टार्ट होने के पहले मैंने एक 2 आवर्स का एक वीडियो शेयर किया है ऑन पाइथन। डिपार्टमेंट के ही एक डेवलपर हैं, उनकी वॉइस में वो है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट यदि हमारी रहती हैं लाइक पाइथन को इंस्टॉल करना या एनाकोंडा को इंस्टॉल करना, तो वो आप यदि सिस्टम पे कुछ कोड वगैरह के बारे में हम लोग समझना चाहते हैं तो वो प्री रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने सिस्टम पर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें। अब जैसे जैसे सेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा और आपकी क्वेरीज आएंगी तो हम लोगों को ये क्लियर होता जाएगा कि हमें किस लेवल से चीजों को इंट्रोड्यूस करना है। एक मतलब एक पार्ट इस तरीके से हो सकता है, सपोज दैट कि हमने टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में ओवरव्यू दे दिया, एक पार्ट हो गया। ओवरव्यू देने के बाद ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, उसके थोड़े से कोडिंग के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया। कोडिंग एक्चुअली हुआ क्या, जैसे सपोज दैट हमने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो जब वो प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूस करते टाइम उसको आपको लाइव रन करके दिखाएंगे ऑन सिस्टम। एक डेवलपर और हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, वो सिस्टम वो उस प्रोडक्ट को आपके साथ लाइव एक्टिव करके दिखाएंगे, डीप लर्निंग वाले मॉडल को सिमुलेट करके दिखाएंगे। तो जब आपको मॉडल रन करके दिखा दिया उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टास्क पे आते हैं ऑन कोडिंग पार्ट। तो कोडिंग पार्ट हमारे लिए इतना इजी नहीं रहता है किसी भी प्रोडक्ट के कोड के बारे में समझाना, बट हाँ बेसिक बेसिक जो सिंटैक्स होते हैं, ये बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है उसके बारे में तो हम काफी इजी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है, चीज तो ये हो गई। और जब ये सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स से किस तरीके से रिलेट है। जैसे करंटली आईओटी एआईओटी हो गया है, आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो उसके बारे में भी हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताएंगे। तो उसके पहले मैं एक कंपनी का बैकग्राउंड बता दूं, रोबोट्रॉनिक्स इंडिया क्या काम करती है, अभी तक कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बेसिकली आज के 3 से 4 साल पहले हम लोग 2015 तक टिल 2015 हम लोग एजुकेशन में भी थे। एजुकेशन में लाइक इस तरीके के वर्कशॉप्स कंडक्ट कराना, सेमिनार कंडक्ट कराना, और
मतलब प्योरली होल सोल एजुकेशन वाला वर्क था टिल 2015 के बाद हम लोग डेवलपमेंट में आ गए। तो अभी जैसे हम लोग लेटेस्ट आईआईटी रुड़की से जुड़े हुए हैं, आईआईटी गुवाहाटी के साथ अभी हमने वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं। एमपी की यदि बात करें, एमआईसीटी भोपाल, इंदौर में जो लोकल यहाँ के कॉलेजेस हैं, जीएसआईटीएस या देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हम लोग इस तरीके के सेशन कंडक्ट कराते हैं। इवन जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो कहना चाहिए जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी इंटर्नशिप में भी हमारे एक रोल रहता है कि यदि उनको एआई और डीएल में कोई रिसर्च करनी है और रिसर्च से रिलेटेड हमसे कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग जस्ट डीएवीवी के सामने हैं, तो यहाँ के इंटर्न्स भी हमारे पास आते हैं। जो एमटेक स्कॉलर रहते हैं वो भी हम वर्कशॉप्स इस तरीके की, जस्ट अ सेकंड, एजुकेशन में हम लोग इस तरीके के वर्कशॉप, इस तरीके के टेक्निकल प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट में या टेक्नोलॉजी। लाइक कंपनी प्रोफाइल किन किन टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, और उसके बाद सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा जो आज हम आपको प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्रॉप डिटेक्शन सिस्टम है हमारा ऑन एआई बेस्ड, तो उसके बारे में हम लोग, तो हम ऐसे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ ग्रुप पे ही डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंट ये रहेगा कि वो चीजें आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें। और जितने भी डेवलपर्स हैं जो आपको नेक्स्ट 10 to 15 डेज तक आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं, उनके भी जो जो डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। तो कोई भी हमारी वर्कशॉप होती है, चाहे वो आईआईटीज की हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की हो या कॉलेज की हो, तो मेरे पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप सेशन को पूरा प्रॉपर कंटिन्यू करें। नॉर्मली होता ये है कि हमने आज सेशन अटेंड किया और किसी कारणवश हम एक दिन नहीं कर पाए, 2 दिन नहीं कर पाए, यदि सेशन इस तरीके से डिस्कनेक्ट होता है तो पूरा उस तरीके का फायदा हमें उससे नहीं मिल पाता है। 15 डेज का तो हमारा ये सेशन है जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि कोई भी स्टूडेंट यदि किसी रिसर्च पर काम कर रहा होता है या हमसे कुछ टेक्निकल आपको गाइडेंस लगता है, तो आफ्टर 15 डेज भी आप रोबोट्रॉनिक्स इंडिया से जुड़े रह सकते हैं। आपको कुछ ऑफिशियल नंबर हम आपको यहाँ के प्रोवाइड कर देंगे जो बेसिकली ग्रुप पे हैं, या आप ग्रुप से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो इस सेशन के प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं स्वतंत्र सर, इनके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम जैसी कंपनीज का जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टेक्नोलॉजीज को लोगों तक पहुंचाना। अब यदि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, हो सकता है कल के दिन ये बिजनेसमैन बने या कोई एंटरप्रेन्योर बने या फिर कहीं कंपनी में अच्छी पोजीशन पर जॉब करें या फिर टेक्निकल कंसल्टेंट बने, तो ये टेक्नोलॉजीज उन तक पहुंचाना चाहिए। बेसिकली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एआई की बात करें, एक समय तक ऐसा बोला जाता था जब ये 2015 के आसपास इन टेक्नोलॉजी का मतलब यूं कह सकते हैं कि आना हुआ था, तो पहले ऐसा बोलते थे कि कोर सीएस, कोर इलेक्ट्रिकल, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर आईटी, इस तरीके के कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज किया हुआ करते थे मार्केट में। जैसे आई एम फ्रॉम 2010 पास आउट विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो उस टाइम की इंजीनियरिंग लाइफ में जो मेरी 6 से लेकर 10 तक इंजीनियरिंग लाइफ रही है, उसमें बेसिकली हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज्यादा फोकस किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और कॉलेज में भी ऐसा बताया जाता था कि नहीं आप तो इसी वाले हैं, आपको C++ या PHP या फिर पाइथन, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन 2013 एंड 14 के बाद जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए हैं, सारी ब्रांचेस एक प्लेटफॉर्म पर रह के काम कर रही हैं। अभी भी हम लोग जिस एग्रीकल्चर डोमेन में हम लोग काम कर रहे हैं और जो जो हमें गाइडेंस मिल रहे हैं, वो इतने बढ़िया हैं कि हम लोग अपनी स्किल्स को और आगे बढ़ा रहे हैं। सपोज दैट आप लोगों में से ही कोई पर्सन ऐसे मिल जाए जो हमें एग्रीकल्चर को लेके गाइड करें कि अभी आप ऐसा काम कर रहे हैं, अब आप इसको ऐसा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो अभी आपको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, हो सकता है उस प्रोडक्ट में 2 से 4 मॉडिफिकेशन आप ही बता दें। तो हर वर्कशॉप से, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम से या हर कोई भी इस तरीके का सेशन कंडक्ट करने से हम लोग के भी बेनिफिट्स रहते हैं। तो हम लोग को बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी 5 से 7 डेवलपर इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आप उन सबके साथ इस तरीके से अटैच होइए
कि आपके पास कोई सजेशन हो तो आप वो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारे साथ शेयर कर सकें। और वो शेयर कब कर पाएंगे, आप डेप्थ में कब समझ पाएंगे, ये तब पॉसिबल है जब इस सेशन को आप कंटिन्यू लेके चलेंगे। वही जो मैंने बताया कि हम आज प्रेजेंट हैं तो हमें कल भी होना है, परसों भी होना है, जितनी भी लास्ट डे है, लास्ट डे आई थिंक 10-15 के आसपास है कुछ। तो ये हमारी पहली एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि अभी एकदम से सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, मैं प्री रिक्वेस्ट बता रहा हूँ, आज का, कल का, परसों का सेशन मेरा है, जिसमें आपको ये सब डिवाइसेस के बारे में एक पूरा मैं बेसिक ओवरव्यू दूंगा। कोई आज कोडिंग का पार्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई हम इतने डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं कि हम दूसरे तीसरे दिन में है सेशन को बोर समझने लगे। और इन केस कहीं ऐसा आपको लगता है कि सेशन बहुत ज्यादा डेप्थ में हो रहा है या बहुत ज्यादा टेक्निकल वो में जा रहा है कि बाउंस हो रहा है, तो आप प्लीज एट दैट टाइम हमें वहां पे आप स्टॉप कर दें। हम लोगों की ये इच्छा है कि हम कुछ प्रोग्रामिंग वाला पार्ट आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं, वो हमारी इच्छा है ना। वो इंट्रोड्यूस कराने से क्या हो जाएगा कि आप उसका बहुत टेक्निकल डेप्थ समझ पाएंगे, डिवाइसेस की सिर्फ हमें वर्किंग आपको नहीं बतानी है ना? तो आई एम कमिंग ऑन शेयरिंग मोड। मैं आपको पहले एक छोटा सा कंपनी प्रोफाइल के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और चैट बॉक्स का बहुत प्रॉपर यूज करें। कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे वहां पे बताएं। स्क्रीन इज ऑन शेयरिंग मोड, शेयरिंग मोड में स्क्रीन है। बगल में आई थिंक कंपनी प्रोफाइल आपके लिए विजिबल है। ये आपको ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा। देखिए हमारे यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हम लोग जिन टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं दैट इज मेनली एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी। आईओटी इट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एम्बेडेड सिस्टम मतलब इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है उनको इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा जरूरी है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए हम लोगों का बैकग्राउंड क्या है, हम लोग काम किस तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये आपको एक सैनिटाइज, एक मतलब लेटेस्ट जो प्रोडक्ट बता रहे हैं, ये प्रोडक्ट पिछले 2 साल से हमारा काफ़ी लंबे समय से मार्केट में, ये ऑटोमेटिक एक सैनिटाइजिंग सिस्टम है। जिस तरीके के छोटे और बड़े सिस्टम सब लोगों ने लिक्विड और यूवी बेस्ड बनाए हैं, इंदौर एयरपोर्ट पर हो गया या फिर यहाँ पर जो देखा जाए चार्टर्ड बस स्टैंड हो गए, तो ये काफ़ी सारे यूवी सिस्टम्स वगैरह या फिर लिक्विड सिस्टम्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। दूसरा हम लोगों का एक पार्ट है दैट इज वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। हम लोग वेब एप्लीकेशन और ऐप डेवलपमेंट पर हम लोग काम करते हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट है, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। तीसरा जो हमारा पार्ट है AI ML एंड डेटा साइंस का है। इट मीन्स हम लोग मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस पर काम करते हैं। तो ये बेसिकली रोबोटॉनिक्स इंडिया के 3 डोमेन हैं। इन 3 डोमेन में हम लोग काम करते हैं। अब यदि कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में लिया जाए तो जैसे मैं भी आपको एक यूवी सिस्टम के बारे में बता रहा था, ये हमारा यूवी सिस्टम है जो लास्ट ईयर हम लोगों ने अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए ये हम लोगों ने सेल किए थे। ये यूवी सिस्टम पर्टिकुलर सैनिटाइजिंग सिस्टम है। इवन हम सभी बेसिकली एमपी से ही हैं, तो आपने सुना ही होगा कि एमपी में चार्टर्ड बसेस चलती हैं। तो चार्टर्ड बसेस में हम लोगों ने एक वायरलेस यूवी सिस्टम इंस्टॉल किया था जो कि आईओटी बेस्ड डिवाइस थी। तो ये मूवेबल रहता है, इसको जैसे हम ऑफिस को ही अपना सैनिटाइज करना है तो पर्टिकुलर एरिया वाइज हम लोगों ने इस तरीके के सिस्टम्स को लॉन्च किया था। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, हम लोग बिल्कुल भी टेक्निकल डेप्थ में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। टेक्निकल डेप्थ में हम तब जाएंगे जब हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये कंपनी के बारे में, बट ये ज़्यादा इस पर टाइम हमें नहीं देना है। ये एम्बेडेड सिस्टम, कुछ हम लोग सेकंड पार्ट जो होता है वो वेब एप्लीकेशन लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट और एंड्रॉयड और iOS ऐप डेवलपमेंट का काम होता है, उसका सेकंड पार्ट है हमारा। इससे रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, ये कंपनी प्रोफाइल में आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा। तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा मशीन लर्निंग और AI से रिलेटेड।
मशीन लर्निंग और एआई में हम लोगों ने काफी सारे प्रोडक्ट्स पे काम किया है, उनके भी मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा अभी ग्रुप पे इंस्टाग्राम के लिंक के साथ में। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कुछ ह्यूमैनॉइड रोबोट पर भी काम किया, जैसे आपको एक मशीन दिख रही होगी, ये हमारा एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है, द नेम इज दिस मशीन इज केविन। तो इस मशीन को हम लोगों ने एज अ सर्विंग रोबोट जैसा लॉन्च किया था। यहाँ पे किसी कोई इनॉग्रल फंक्शन हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोग डीएवीवी के जस्ट सामने ही है, तो तक्षशिला कैंपस में काफी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, तो सरस्वती पूजन एंड कोई भी इवेंट का इनॉग्रल फंक्शन होता है तो हम इस मशीन को वहाँ भेजते हैं। मशीन के कुछ मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मशीन बुकेज वगैरह गेस्ट वगैरह को प्रोवाइड करती है, और ये ऑटोमेटिक रहती है, जस्ट लाइक एज अ गूगल असिस्टेंस, या यू कैन से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको रिमोट से, या फिर हम लोग वाईफाई एक्सेस के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कंपनी प्रोफाइल है रोबोट्रॉनिक्स इंडिया की। वी आर सिचुएटेड इन अतुल्य आईटी पार्क इन इंदौर। तो अब इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं, अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जो काम किया, इसके पहले तो काफी सारे कुछ तरीके के ऐसे आईओटी प्रोडक्ट्स में काम किया था, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हमने बना के दिए, जैसे आपने नॉर्मली भी सुना होगा कि ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोलर है ना, कि हम लोग यहाँ से एक इंफॉर्मेशन भेजते हैं, एक मैसेज को भेजते हैं तो वाटर पंप ऑन हो जाता है, या जो कहते हैं कि हमने खेत में कोई मोटर लगाई है उसको यहाँ से हम बाया मैसेज ऑन और ऑफ भेज सकते हैं। हमने ऑन का मैसेज भेजा तो मशीन ऑन, और ऑफ का मैसेज भेजा तो मशीन ऑफ। उसके बाद उस पर टाइमर्स भी लगे होते हैं, वो सब जीएसएम टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ इसी तरीके के प्रोडक्ट्स पे काम करते थे, वाटर कंट्रोलर हो गया, या फिर यूं कह सकते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, जो एग्रीकल्चर में लगते हैं। अब एक्चुअली हम लोग जिस फील्ड में आए हैं वो है आपके डिसीज डिटेक्शन, किसी पौधे की ग्रोथ को समझना, कि हम लोग ने नंबर ऑफ फ्लाइट्स दी और उस फ्लाइट के अकॉर्डिंगली उस पौधे की पूरी ग्रोथ को, या पर्टिकुलर हमने 100 पौधों की ग्रोथ को समझा, उनको एनालिसिस किया, तो उनके बारे में जो हमारा एनालिसिस रहा है वो एनालिसिस हम आपको लाइव दिखाएंगे, और उसमें भी कोई ना कोई हमारे लिए गाइडेंस या मेंटोर में रहा है। जैसे मैंने बताया सोयाबीन प्लांट हमारा जो आईसीएमआर है, यहाँ के कुछ मेंटर्स हमने लिए थे, यहाँ से कोई ना कोई सजेशन में थे, ये बात अभी जुलाई और अगस्त की है, एक उसी के बेसिस पे हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया था। तो ये लिटिल बिट एक कंपनी प्रोफाइल है जो मैंने आपके साथ शेयर की। चलिए, अब इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन, हम लोग सेशन को हमेशा इस तरीके से रखना चाहेंगे कि यदि किसी की कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरी रहती है तो क्वेश्चन क्वेरीज के लिए हम लोग 2 मिनट 5 मिनट का पॉज ले लेंगे, 1 मिनट का पॉज ले लेंगे, और एट दैट टाइम हम लोग उस चीज को डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये बेसिकली एक लिटिल बिट रोबोट्रॉनिक्स इंडिया का एक इंट्रोडक्शन था। आपको कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है ना हम लोगों के बारे में, हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं? आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ में आपको आया होगा। बाकी कंटिन्यू हम सेशन करेंगे तो सेशन कंटिन्यू करते टाइम धीरे 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 चीजें और आ जाती हैं। अभी भी जैसे सपोज दैट आपके लिए जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, उस प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करते टाइम आपको भी वो प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अभी तक के 20 मिनट या 25 मिनट के सेशन में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन इज ऑन शेयरिंग मोड, मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं। उसके पहले मैं आपको एक वीडियो प्ले कर दूं कोई भी एक प्रोडक्ट का, जैसे हमने एक यूवी सिस्टम का वीडियो बताया था, एक दो चीजें आप ये देख लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज दैट जो हमारे एक प्रोडक्ट है उसका ही एक वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ, दैट इज रोबोट का, जिस तरीके से हम लोग रोबोट को यूज करते हैं। वीडियो इज ऑन शेयरिंग मोड। Yes, sir. Your video is visual, sir. थैंक यू सुदन सर। देखिए, ये एक मशीन है। अब देखिए, डीप लर्निंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं इन वीडियो को शो करने का इंटेंशन बेसिकली ये है कि इन चीजों का भी हमारे प्रोग्राम से लेना देना है। ये सिर्फ एक कंपनी इंट्रोडक्शन के लिए नहीं है कि हम लोग सिर्फ कंपनी को इंट्रोड्यूस कराना है या हमें प्रोडक्ट बताना है इसलिए दिखा रहे हैं। आगे वाले सेशन में इन चीजों को हमने किस तरीके से रिलेट किया है, इवन हम उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो इस डिवाइस में प्रोग्राम्ड है, जिस प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम हमने किया है, जिन सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम किया है, वही हमने एग्रीकल्चर में उन्हीं चीजों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हमने उस प्लेटफॉर्म को यूज किया है। ठीक है, मैं आपको
बेसिकली ये लेगो रोबोट्स नहीं है, ये डीसी मोटर बेस्ड मशीन है। मशीन को हमने सोर्स टू डेस्टिनेशन ए से बी तक के लिए भेजा, और उसके पास कुछ सरस्वती पूजा के लिए कुछ मतलब लाइक फ्लावर वगैरह कैंडल्स वगैरह भेजी। यहाँ से हमने उसको भेजा एक कमांड देके, और दूसरी कमांड से मशीन वापस आ जाएगी। जिस प्लेस से ये स्टार्ट हुई थी उसी प्लेस पे ये वापस आ जाएगी। मशीन जो है प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मशीन प्लेटफॉर्म से अपने आप नीचे उतर आई, उसके नीचे भी मोटर्स के साथ सेंसर्स लगे हुए हैं। यदि कहीं डिटेक्ट ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल कि जो डिस्टेंस है उसके फ्लोर से ज्यादा है, तो वो मशीन वहां से टर्न ले लेगी, है ना। तो ये इस तरीके की एक मशीन थी। अब इसमें जो डिवाइसेस यूज की गई हैं लाइक रेस्पबेरी पाई को हमने इसमें यूज किया है, और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हम लोग नैनो और जेटसन को यूज कर सकते हैं, है ना। रेस्पबेरी पाई हो गया, फिर वायरलेस डिवाइसेस में हम लोग ने वाईफाई और ब्लूटूथ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह यूज किए हैं। ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इनका यूज किस तरीके से है। तो ये केविन नाम की एक मशीन है जिसको हमने लॉन्च किया था। उसके बाद हमारे दूसरे मशीन थे लाइक एक मशीन हमने लॉन्च की थी, इसका नाम था क्वांटा। क्वांटा इज वेलकम रोबोट। वो बेसिकली हमारे एक वेलकम रोबोट है, उसका भी मैं आपको वीडियो प्ले करूंगा। वेलकम रोबोट हमने यहाँ पे होंडा के शोरूम पे रखा था। कोई भी कस्टमर यदि आता है तो वो कस्टमर को बाकायदा दोनों हाथ जोड़ के वेलकम करता है होंडा की तरफ से, और उसके साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने इनपुट में किए थे। तो जैसा हम लोग एलेक्सा के साथ कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही हमने क्वांटा के साथ किया था। तो एक प्रोडक्ट ये था, उसका वीडियो करंटली अभी मैं फोल्डर में नहीं डाल पाया था, जैसे ही पॉसिबल होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरीके से जो ह्यूमनॉइड रोबोट सिस्टम की बात कर रहे हैं, अभी कुछ ही समय में मतलब विद इन 3 to 4 months हम लोग एक सर्विंग रोबोट ला रहे हैं रेस्टोरेंट्स के लिए। रेस्टोरेंट में आपने देखा ही होगा, इंदौर में बेसिकली एक रोबो रेस्टोरेंट यहाँ पे बनने वाला है। उस रोबो रेस्टोरेंट में वो रोबोट सर्व करेगा। यदि शेफ ने या फिर काउंटर से उससे बोला गया है कि ये केवल नंबर मतलब सॉरी ये टेबल नंबर 2 पे आपको ये सर्व करना है, तो वो वहां पे सर्व करके वो मशीन आ जाएगी। उसमें हम लोग वर्किंग डोमेन में वर्किंग में है। अगली एक जो मशीन है वो हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम करने वाले हैं, है ना। एयरपोर्ट इंडिया के लिए भी हम लोग एक वेलकम रोबोट दे रहे हैं, जिसमें मशीन आपके लिए फ्लाइट की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेगी। कौन सी फ्लाइट कब आ रही है, क्या आ रही है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो भी वाया वॉइस हो सकती है। तो ये सारी चीजें भी हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए हैं। इस तरीके के बॉट्स हम लोग अभी मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय में। चलिए, अब इस सेशन के बाद हम लोग आते हैं अपने सेशन में। बेसिकली सेशन का एक पीडीएफ फॉर्मेट था जो स्वतंत्र सर ने आपके लिए ग्रुप पे शेयर की थी कि अगले 15 डेज का हमारा प्रोग्राम क्या है। वापस से मैं उस ग्रुप पे उस पीडीएफ के लिए एक बार फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो बाद में ऐड हुए हैं, लाइक स्वतंत्र सर ने बाद में ऐड किए हैं, तो उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो एक डीप लर्निंग फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर के टाइप की जो एक पीडीएफ है वो मैंने आपको ग्रुप पे शेयर कर दी है। आप इस पीडीएफ को एक बार देख लीजिए जब भी आपको टाइम मिले। और इसके सेशंस को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि इसके जो नेक्स्ट सेशन है वो किस किस तरीके से है ना। आप देख भी लीजिएगा। अब उसमें थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएंगे कि डिटेल में हम लोग सेशन किस तरीके से ले रहे हैं। जैसे सपोज दैट ये शुरू के 3 डेज के जो सेशन है, 6 सेशन में इसको यूनिवर्सिटी ने डिफाइन किया है, 1 2 3 4 5 6। 2 सेशन एक दिन के होंगे, 3 से 4, 4 से 5 का सेशन रहेगा, ये डेली रहेगा। इसमें हम आपको जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से 5.0 का उपयोग हो रहा है, किस तरीके की डिवाइसेस अभी आ रही हैं, ड्रोन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। जिस डिवाइस को अभी हम लोगों ने एज अ स्टेबल डिवाइस काम किया है, वो डिवाइस में इसमें एज अ प्रोडक्ट भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आप सभी लोग ग्रुप पे तो होंगे ही होंगे, मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं शेयर करूंगा आपके लिए। आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। उसका वीडियो क्रॉप डिसीज डिटेक्शन करके एक डिवाइस है, उसको जस्ट अ सेकंड प्लीज। आपके लिए मैंने एक पीडीएफ फाइल और पीडीएफ फाइल के साथ साथ एक इंस्टाग्राम का वीडियो लिंक दिया है। जब भी आपको टाइम मिले आप इसको देखिएगा। मैं आपको पहले उस डिवाइस के बारे में थोड़ा सा एक पीडीएफ ओपन करके डिस्क्राइब कर दूं। जस्ट अ सेकंड प्लीज।
Screen is on sharing. देखिए, इस डिवाइस के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये बेसिकली डिवाइस है जिस पे अभी हम लोगों ने लेटेस्ट काम किया है। इस डिवाइस को आप वर्किंग और सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स में एक्सप्लेन की जाएंगी। तो आपको बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, यहाँ पे अभी हमने यूज़ किया है क्रॉप डिसीज डिटेक्शन यूजिंग AIoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। अब AIoT और डीप लर्निंग मतलब AIoT AI का अगला पार्ट है। तो आपको IoT भी इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे करता है। जैसे जनरल ऑफ लाइफ में हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग AC के टेम्परेचर को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। नॉर्मली ऐसा भी रहता है कि टेम्परेचर सपोज दैट एक पर्टिकुलर डिग्री से ज्यादा होता है, 33 डिग्री से ज्यादा होता है, तो उसकी जो आउटर मशीन होती है वो ऑफ हो जाती है। वो सारा एनालिसिस हम लोग वेब पे देखते हैं या ऐप पे देखते हैं। इसी तरीके से ये जो मशीन है या जो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको हम लोगों ने जो नाम दिया है कि क्रॉप डिसीज डिटेक्शन, है ना, जो सिस्टम है ये बेसिकली AIoT पे बेस्ड है। इट मींस ये डीप लर्निंग का ही पार्ट है। डीप लर्निंग और AI यूं कह सकते हैं, दोनों एक ही वर्ड्स हैं, ज्यादा कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था बेसिकली कि सपोज दैट अभी ये जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल है। इसी डिवाइस को लाइक इसी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, रास्पबेरी पाई को, कैमरे को हम लोग फ्लाइट पे ले जाएंगे। लाइक हम लोग वो चीज ड्रोन पे ले जाने वाले हैं। हम लोग को पहले रिजल्ट्स पे काम करना था कि हम लोग जिन डिसीज को डिटेक्ट कर रहे हैं, सोयाबीन क्रॉप की या सोयाबीन प्लांट की, मतलब उसमें हमने सोयाबीन के जो फ्लावर्स होते हैं, जो क्रॉप होती है, पत्तियां होती हैं, उसके बाद उसका जो फल होता है, फ्रूट होता है ना, उस पे तीनों पे काम किया। और आखिरी में जो हमने फ्लाइट ली थी तो उसके पौधे की बाकायदा लेंथ पे भी काम किया है कि कितने समय में किस एरिया के 4 पार्ट को डिवाइड कर दिया था कि पौधे की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। तो अभी हम लोग ये काम कर रहे थे एक स्टेबल डिवाइस को लेके। ये डिवाइस हम लोगों ने इंस्टॉल कर दी थी और उससे अलग अलग फ्लाइट लेते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम इस पूरी डिवाइस को ड्रोन पर शिफ्ट करने वाले हैं। आप लोग से, जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि हमारा यूनिवर्सिटी के बिहाफ से जो ग्रुप बना हुआ है, यूनिवर्सिटी ने जो ग्रुप बनाया है, आप यदि इस ग्रुप पे बने रहते हैं, आगे भी हम लोग इस तरीके की कोई भी काम करते हैं इस फील्ड से रिलेटेड, वो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और ऑनेस्टली पुराने 8 से 10 साल का हमारा ये एक्सपीरियंस है कि हमें जो सजेशंस स्टूडेंट के बिहाफ से या जो रिसर्चर के बिहाफ से, मतलब जो PhD रिसर्चर्स रहते हैं या फिर जो MTech होल्डर्स रहते हैं, इनके बिहाफ से जो हमें सजेशन मिलते हैं वो एक्चुअली हमारे डेवलपमेंट में काम आते हैं। हम लोग का डेवलपमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग यहाँ पे लगभग 16 डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन सबसे अच्छे सजेशन हमें जो डेवलपर्स के लिए मिलते हैं वो लर्नर्स के साथ ही मिलते हैं, आप लोगों के साथ नहीं। तो आप लोग भी अपने सजेशंस रखते रहें और बताते रहें। ये PDF आपके साथ पूरी शेयर हो गई है और उस PDF के साथ में सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में आप एक बार देख सकते हैं आराम से। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, वो वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। कुछ सोशल नेटवर्क हैं ऑफिशियली कंपनी के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। इंस्टाग्राम हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इनके साथ हम लोग वीडियो और इमेजेस और करंट एक्टिविटीज शेयर करते हैं। सपोज देखो ये वाला AIoT का प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड दूसरे भी प्रोडक्ट हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जिस मैं कैबिन में बैठा हुआ हूँ, इस कैबिन में हम लोगों ने जो फायर डिटेक्शन था, वो नॉर्मली शीशे जैसे होता ना कि फायर डिटेक्शन बाय सेंसर्स से ना करते हुए वो हमने इन कैमरों से किया हुआ है। और किसी इंडस्ट्री के लिए, केमिकल इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने एज अ प्रोडक्ट दिया हुआ है। उसका भी मैं आपके साथ वीडियो और ये सब सारी चीजें शेयर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो शुरू के 3 डेज का सेशन है वो मेरा सेशन है। मैं इट मीन्स भूपेंद्र सिंह। इसमें कुछ मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन, जैसे आपको बताया अभी मैं करूंगा। उसके बाद 5.0 के बारे में डिस्कशन करूंगा। कल के सेशन में हम आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोगों ने क्या क्या प्रोडक्ट्स किए हैं, क्या क्या डिवाइसेस होती हैं। आपके लिए हो सकता है ये चीजें एकदम नई लगे, लाइक पहली बार आप सुन रहे हैं कि कंट्रोलर्स क्या हैं, प्रोसेसर्स क्या हैं, बट आप इसको एज अ टेक्निकल लेते हुए इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझिए।
भले ही आपका बैकग्राउंड अलग हो, बट इनको आप समझिए कि कंट्रोलर्स वगैरह क्या होते हैं, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर्स, ये क्या होते हैं, ये वर्क किस तरीके से करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अब स्कूल्स में भी आ गई हैं। मतलब जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें एआई के लिए या आईओटी के लिए स्कूल्स के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया। हमारे लिए कुछ स्कूल्स के प्रपोजल्स आए हैं, उसमें ये बताया गया कि आप स्कूल्स के लिए चीज़ें बताइए, तो हमारे लिए तो बहुत आराम है, आराम से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर एआईओटी ने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसके बारे में हम बताएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जो मैंने बताया इनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। और फिर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का डिस्कशन रहेगा कि पाइथन क्या होता है, रेस्पबेरी पाई क्या होता है, ये डिवाइस कैसे काम करती है। तो ये मान के चलिए शुरू का ये 2 से 3 दिन का डिस्कशन है। इसमें हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग के बारे में या कोड के बारे में ज्यादा लर्निंग नहीं करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग एक प्लेटफॉर्म ही तैयार करने वाले हैं। सिर्फ लाइक ये समझ लीजिए, हमारा कोई ये प्रोडक्ट है, सपोज दैट आई थिंक मैं कैमरे में विजिबल हूँ प्रॉपर, यहाँ तो मुझे नहीं दिख पा रहा है। स्वतन सर, कैमरे में मैं शायद विजिबल हूँ? नहीं, यस सर, यू आर विजुअल सर। ओके, थैंक यू सर। देखिए सपोज दैट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। एक ये रोबोट है ना। इस रोबोट पर अब ये बेसिकली रोबोट क्या काम करता है, इस रोबोट को यदि मैं यहाँ से एक कमांड दे दूं कि अभी मैं डोर्स ओपन है हमारे ऑफिस के, और इस रोबोट से बोलूं कि आप एक काम करो, पूरे फ्लोर की, मैं 4th फ्लोर पे हूँ, पूरे फ्लोर की आप एक फ्लाइट लेके आइए। फ्लाइट लेके आइए, इट मीन्स ये है कि आप पूरे फ्लोर पे जाइए। पूरे फ्लोर पे जाके, इसमें एक कैमरा भी लगा हुआ है, लेडार सेंसर भी लगा हुआ है। अब ये कैमरा और लेडार सेंसर क्या होता है ये भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो रोबोट दिखा रहा था इसकी आपके लिए एक पिक भेज रहा हूँ, तो आप देखिएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप प्लीज इस चीज को थोड़ा सा इस वे में ना ले जाएं कि ये बहुत टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, मैं आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है। इस रोबोट को यदि मैं एक कमांड यहां से दे देता हूं, मैं आपको इस मशीन को लाइव भी दिखा सकता हूं। तो ये पूरे फ्लोर पे यहाँ पे पूरा हमारे लिए जी मैप, गूगल मैप एक्सेस कर देगी। लोकेशन को हम यहाँ से ट्रेस कर लेंगे और हम अपने सिस्टम पे देख लेंगे। ऊपर यहाँ पे इसके टॉप पे एक सेंसर लगा हुआ है, सेंसर्स की कितनी हाइट पे क्या है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। इसके आजू बाजू क्या है हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा इस पे जो कैमरा लगा हुआ है वो सारी फुटेज हमें यहाँ पे शेयर करता रहेगा, और ये मशीन को मैं सिस्टम से कंट्रोल करके हर जगह ले जाए, मतलब गूगल मैप से सारी चीजों को मैं यहाँ से मतलब मैपिंग करके मशीन को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब इस मशीन के बारे में यदि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, एक्चुअली यदि मैं इसी मशीन को एक्सप्लेन करूं तो इस मशीन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, यदि टेक्निकल इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। और मैं आपको इस मशीन के बारे में ओवरव्यू दूं तो 10 से 15 मिनट में इस मशीन का मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूं। तो मैं टेक्निकली पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए टेक्नोलॉजीज के बारे में जितने ज्यादा डेप्थ में हो सके। सेकंड थिंग इज दैट इस मशीन के बारे में बताया, तो पहले सेशन में हमारा यही कंसर्न है कि पहले सेशन में हम आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपके लिए इंट्रोड्यूस कराएं। उसके बाद जब हमारा सेकंड सेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये इसलिए शुरू के सेशन में इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं कि बाद में जब कोई भी डेवलपर आएगा तो वो डेवलपर के साथ में आपको पहले से पता रहे कि ये लोग क्या क्या कराने वाले हैं। अब यहां से हम थोड़े से टेक्निकल आ जाएंगे, है ना। मैं आपको श्योर कर रहा हूं, यदि इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, यहाँ पे यदि कोई भी पार्टिसिपेंट है उसको पाइथन का पी भी नहीं पता होगा कि पाइथन होता क्या है ना, और वो अपने आप को इस डोमेन में रखेगा, है ना, तो जो यूनिवर्सिटी के बिहाफ से आपको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताऊं ना, हम लोग बहुत सारी वर्कशॉप्स वगैरह करते रहते हैं। जब कभी भी हम लोग आईआईटी रुड़की की, आईआईटी गुवाहाटी की, आईआईटी इंदौर की ये वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाइएगा तो आपको देखने मिलेगा। तो होता क्या है, कुछ पार्टिसिपेंट की ये सोच रहती है कि यार हम सिर्फ मतलब ये यूनिवर्सिटी के बिहाफ से हो रहा है तो हम सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए आ जाएं, या हमने 3 दिन ये प्रोग्राम अटेंड कर लिया, 4 दिन प्रोग्राम अटेंड कर लिया तो हमें सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। बट वो फिर सर्टिफिकेट ही रह जाता है, भले चाहे वो आईआईटी का हो, भले चाहे वो नासा का हो, है ना, सर्टिफिकेट ही है फिर वो, यदि आपके पास नॉलेज नहीं है। अब यदि इस प्रोग्राम के लिए मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम के लिए जिस तरीके से स्वतंत्र सर के कोऑर्डिनेशन में और यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया है, कुछ शुरू में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड था
कि यूनिवर्सिटी इतने लेवल तक के प्रोग्राम कराने का सोच रही है, पूरा को-करिकुलम तैयार कर रही है, डेवलपर्स की टीम को इंट्रोड्यूस करा रही है, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट ही नहीं आ रहे हैं। कुछ पार्टिसिपेंट का कहना है कि कौन अटेंड करे, कैसे करे। ये प्रोग्राम जो हम उनको 15 डेज के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, अभी मैं कोई फाइनेंशियली डिस्कशन नहीं करूंगा, जब भी ये प्रोग्राम हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए 15 डेज 20 डेज के लिए कंडक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा लमसम में मतलब इस कंपनी के लिए पे करती है, रोबोटॉनिक्स इंडिया के लिए। मतलब उसमें स्टूडेंट के से भी चार्जेस लिए जाते हैं लमसम पे, और इनसे भी किया जाता है, जिसको एक इंटर्नशिप बोलते हैं, है ना। बट शुरू में ऐसा पता चला कि स्टूडेंट्स ना जाने क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो जो कोऑर्डिनेटर है उनसे मेरा डिस्कशन हुआ कि जो भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं इनको हम कन्विंस करें कि नेक्स्ट 15 डेज तक ये रहें, और उन 15 डेज में हम आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल्स, पर लिखा है कि मैथ, टाइम, कैलेंडर, नमपाई वगैरह क्या है, अरेज क्या है, 1D 2D 3D में इनका यूज क्या होता है, तो कंप्यूटर विजन क्या होता है, फिर वो इमेजेस वगैरह कलेक्शंस क्या होता है। ये सारी ही चीजें आपको किसी प्रोडक्ट के डेप्थ में ले जाएंगे। इवन भविष्य में ऐसा होता है कि आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो आप लेवल तक उन चीजों को समझ सकते हैं, बशर्ते कि आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझें। तो ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो 6 सेशन हैं, ये 6 सेशन मिस्टर अभिषेक आपके साथ इस टाइम पे सेशन में जुड़ेंगे, और ये पाइथन प्रोग्रामिंग को आपके साथ लाइव करके दिखाएंगे। पाइथन बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग है। एक 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के हम किसी स्कूल स्टूडेंट को भी बिठा लेंगे तो भी वो ये प्रोग्रामिंग को कर लेगा। तो आपसे जो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही बोलूंगा कि आप यदि सिस्टम के साथ बैठते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और जो सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल करना है वो भी प्रोसेस हम पूरी आपको बता देंगे। 3 से लेके 5 तक का तो ये सेशन है, ये ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया है। लेकिन यदि पार्टिसिपेंट ये बोलते हैं कि नहीं सर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप 5 के बाद भी हमारा एक डाउट सेशन रखिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए, हाफ एन आवर के लिए, तो डेवलपर आपको वो चीज भी कंटिन्यू करेगा, है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल जैसा मुझे स्वतंत्र सर ने बताया था कि हम बहुत प्रोग्रामिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें बताएंगे तो पार्टिसिपेंट को समझ में ना आए। तो यदि हम लोग समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग 10th 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो हम तो लाइक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, और इसमें भी कोई विशेष हायर मैथमेटिक्स या ऐसा कुछ भी नहीं है, या हायर लॉजिक्स ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, ये सेकंड सेशन हुआ मिस्टर अभिषेक का। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग और कॉन्सेप्ट से बढ़ जाएंगे। देखिए, आप उसको यूं ले सकते हैं कि हमें किसी डिवाइस को समझाना है, तो डिवाइस को समझाने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लेवल समझा दिया आपके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए बेसिक इमेज बेसिक्स, है ना। मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग कोई इमेज ले रहे हैं, अब हमें उसका एनालिसिस करना है, उसकी डिसीज के बारे में एनालिसिस करना है। हमने कोई लीफ ली, वो लीफ कैसी है, मतलब वो लीफ ऐसा बोलते हैं ना कि खराब हो गई है, या फिर वो येलोनेस उसके ऊपर ज्यादा है, या फिर वो एकदम स्वस्थ लीफ है, मतलब बाकायदा हेल्दी लीव्स है। तो उसका डिस्कशन इस वाले पार्ट से आएगा, इमेज बेसिक्स के बारे में। फिर सेकंड पार्ट रहेगा वर्किंग ऑन इमेजेस साइजेस। अब जैसे मैंने आपको फिर बताया कि हम लोगों ने फ्लाइट ली का मतलब ये है कि एक इमेजेस ली हमने, फ्लाइट बन ली, मतलब एक बार में हम लोगों ने 10 इमेजेस ले ली। अब उन इमेजेस की साइजेस क्या है उनके बारे में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उनको ड्रॉ कैसे करते हैं वो समझेंगे। सर्किल, लाइन, रेक्टेंगुलर, कैसी वो इमेज है उसको हम किसके अंदर डालेंगे, वो फिर उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग आएगी, और फिर उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग का अगला पार्ट रहेगा। तो मतलब आप इमेज वाली जो बात बोल रहे हैं आपसे, वो बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि हम किसी लीफ, किसी फ्लावर या किसी फ्रूट के बारे में, उसकी इमेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो अच्छी है, खराब है, इन्फेक्टेड है। क्लियर है इतना? अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा आपका फीडबैक चाहिए था। जो ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके लिए व्यवस्थित है? ये चीज यस आप सर। पा रहे हैं? कोई भी देखिए, पार्टिसिपेंट को भी बोलना पड़ेगा, हर बार स्वतंत्र सर तो बात यस सर। करेंगे नहीं, है ना। यस सर। मतलब कोई ऐसे पार्टिसिपेंट हमारे साथ होना चाहिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम लोग जब सेशन लेते हैं ना, तो सेशन लेते टाइम हम लोग पार्टिसिपेंट के साथ एकदम थोड़ा सा खुल के बात करते हैं
खुल के बात करने का मतलब ये है कि उनके साथ एक क्लियर डिस्कशन करते हैं कि हम जो आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं ये आपके लिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम यहाँ से बस बोलते ही जा रहे हैं। मतलब वन वे कम्युनिकेशन होगा तो उसमें तो दिक्कत है, हमें प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं यदि किसी से, अब मुझे पता नहीं है इसमें कौन लाइक हायर अथॉरिटी हैं, लाइक हायर अथॉरिटीज मीन्स कॉलेज से हैं, कौन स्टूडेंट हैं, है ना। तो कोई भी एक स्टूडेंट जो अभी हो तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, कोई भी एक स्टूडेंट। Hello, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड नेम प्लीज। Sir, my name is Kuldeep Devda. कुलदीप, हाँ तो कुलदीप, Yes, जो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ तो मेरा क्या कम्युनिकेशन प्रॉपर है आपसे कुलदीप? मतलब आपको yes, चीजें sir. समझ आ रही हैं, Yes, sir. है ना? कहीं कोई इस तरीके की चीजें तो नहीं हो रही कि सर आप टेक्निकल चीजें ज्यादा बता रहे हैं या कुछ और है, ऐसा तो कोई इशू नहीं है, No, no, sir. ऐसा कहीं नहीं. है ना? हम लोग अभी एक जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसको नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कुलदीप, मतलब कुलदीप आपका नाम मुझे अब याद रहेगा, कोई और पर्सन भी आ जी जाए सर. तो उसका भी याद रहेगा कि जी सर. डिस्कशन कर रहे हैं, उस डिस्कशन में आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट लगेगा, 100% लगेगा। अदरवाइज ये जी सेशन ऐसे ही फिनिश हो जाएगा कि भाई कोई आया और ज्ञान दिया और चला गया। हम ये चाहते हैं इस सेशन के बाद भी यदि आपकी इस फील्ड से रिलेटेड कोई और क्वेरी रहती है तो हमें मतलब काफी ज्यादा खुशी होगी आपके आंसर्स करने के लिए। ठीक है कुलदीप, आगे बढ़े। तो फोल्डर नीचे को देना था क्लास सर। अब एक्सचेंज हो गई। ठीक है, तो ये मिस्टर शिव का सेशन था। अगले सेशन में आते हैं। अगले सेशन में आपके लिए मिस्टर आयुष मिलेंगे। तो मिस्टर आयुष आपके लिए समझाएंगे कोई प्रोजेक्ट डिस्कशन के बारे में। अब देखिए ना, अब यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट में ऊपर देखिए 19 नंबर में लिखा है फेस डिटेक्शन इन इमेज, है ना। अब मैं फेस डिटेक्शन पे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, है ना। हम लोग किसी एक कंपनी के प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के बारे में काम कर रहे हैं। जैसे ये जो लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, आपने नाम सुना होगा बायजूस, उडीमी, डेटा कैंप, इन लोग की कुछ लर्निंग क्लासेस रहती हैं। अपने स्कूल्स की भी या कॉलेजेस की भी लर्निंग क्लासेस होती हैं। तो कई बार ये बोलते हैं ना कि आप सभी अपने कैमरे ऑन करके रखिए। कैमरे ऑन करके रखने में ये, जैसे हमने अपना कैमरा ऑन रखा है, तो कैमरा ऑन रखने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई हम आपके साथ लाइव हैं और आपके साथ किस एक्सप्रेशन के साथ पढ़ा रहे हैं वो आपको दिख रहा है। फेस डिटेक्शन मतलब ये है, बहुत ध्यान से समझिए, हम जिस प्रोडक्ट पे काम करने वाले हैं, अब वही फेस डिटेक्शन कह लो चाहे आप इमेज डिटेक्शन कह लो, बात वहीं पे आ जाती है कि इस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि यदि एक क्लासरूम में 50 लोग बैठे हुए हैं, 40 लोग 30 लोग बैठे हुए हैं, अब वो क्लासरूम कैसा है, चाहे वो वर्चुअल है चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में है चाहे वो ऑफलाइन मोड में है, वो 50 के 50 फेस कैमरा डिटेक्ट करेगा और उनके फेशियल एक्सप्रेशन को एनालिसिस करेगा। उन फेशियल एक्सप्रेशन को एनालिसिस करके, देखिए अभी हम पत्तियों की बात कर रहे थे, फलों की बात कर रहे थे, फ्लावर्स की बात कर रहे थे, उसको डिटेक्ट करके हम उसका एक ग्राफ क्रिएट करेंगे, उसका एक एनालिटिक्स क्रिएट करेंगे कि यदि क्लास में 20 स्टूडेंट्स उपस्थित थे, जैसे सपोज दैट आप लोग 50-60 लोग हो, 50-60 लोगों के कैमरा ऑन करा दिए और उस सॉफ्टवेयर को मैंने यहाँ से रन कर दिया जो आपको डिटेक्ट कर रहा है, तो लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन क्या हैं, क्या कर रहे हैं ये पढ़ते टाइम, ये एक्चुअली अटेंटिव हैं या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि मैं पढ़ाते पढ़ाते, या आपकी बात कर लीजिए, मान लो कुलदीप बैठा हुआ है, कुलदीप का मैंने कैमरा ऑन करा लिया, अब कुलदीप पढ़ते पढ़ते टाइम मोबाइल पे बात कर रहा है, तो वो ये चीज शो करेगा कि नहीं आप क्लास के लिए एक्टिव नहीं है, आप सीरियस नहीं है, समझा रहे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा बता रहे हैं कि काफी वो ध्यान से चीजों को देख रहा है, तो एक पर्टिकुलर ग्राफ हमें मिल जाएगा। तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आपके लिए आयुष सर कंडक्ट करेंगे और आयुष सर इसके बारे में आपको टेक्निकली समझाएंगे। फिर हम लोग आते हैं डीप लर्निंग पे, जो हमारा डोमेन है डीप लर्निंग को लेके, डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये बेसिकली जो सारी चीजें हो रही है ना, पाइथन को पढ़ना, इमेज को डिटेक्ट करना, फेस को डिटेक्ट करना, है ना, ये सारा का सारा पार्ट हमारा यही है, बस हम थोड़ा सा टेक्निकल चले गए। तो ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आएंगी कि ANN क्या होता है, CNN क्या होता है, कन्वोल्यूशन नेटवर्क क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम आपको ये भी समझाएंगे कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या है, AI क्या है, इन चीजों के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अगला सेशन आएगा, यहाँ पे आपके लिए मिस मल्लिका मिलेंगी। मिस मल्लिका आपको
डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताएंगे, वही जो CNN वाली बातचीत है। मतलब ये वाला पार्ट कुछ ट्रांसफर लर्निंग से रिलेटेड है। ये जो सारे वर्ड्स आप सुनेंगे ना तो आपको नए नए लगेंगे कि बिल्कुल हम लोग के लिए नया है ना। बट आप जब इनको टेक्निकली समझने लगेंगे तो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं लगेगा। हो सकता हम अपना 100 में से आपको 90% दे रहे हैं, 95% दे रहे हैं। यदि आपको 30% 40% की भी आपकी लर्निंग हो जाती है इन चीजों को लेके, तो ये, हालांकि इससे ज्यादा ही होगी, मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि इस डोमेन को समझने के लिए, एआई को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऐसे इंटर्न्स भी आए हैं जो किसी इंडस्ट्री में, जिनका एक्चुअली एजुकेशनल बैकग्राउंड बीकॉम का रहा है या बीबीए का रहा है, बीसीए का रहा है, बीएससी का रहा है, इस तरीके के बीए का रहा है। ये बैकग्राउंड वाले लोगों ने अपने आप को डीप लर्निंग और एआई में स्विच करके अपनी पूरी जॉब प्रोफाइल को ही स्विच कर दिया है। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल थे। तो उस टाइम पे फर्स्ट क्वेरी यही होती थी कि ये चीजें हमें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी। हम इस फील्ड के लिए लगभग 1 साल देने वाले हैं, तो 1 साल बाद हमारा लेवल क्या रहेगा, है ना। तो वो लोग ये चीज समझ सकते हैं, तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में जब हम पहुंचेंगे, तो ये सेशन मल्लिका मैडम का लास्ट होगा, 30वां जो सेशन रहेगा। इसके बाद कोई भी डेवलपर आपके साथ जो इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो मिस्टर शिव हो, चाहे वो मिस मल्लिका हो, मिस्टर आयुष हो, मिस्टर मेहता हो, कोई भी चारों पांचों डेवलपर, कभी भी किसी भी डेवलपर को आपको सेशन के बाद यदि इन्वॉल्व करना है, कॉमनली इन्वॉल्व करना है, कोई डाउट सेशन रखना है, किसी चीजों को और डीप में समझना है, ये रोबोट्रॉनिक्स इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर को करिकुलम और सिलेबस। अब देखो, हम यहाँ पे आपको CNN, ANN, RNN ये टेक्निकली चीजें नहीं समझा सकते अभी के सेशन, फर्स्ट सेशन में। यदि ये हम समझाने लग गए तो अभी वही समस्या आ जाएगी कि सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स हैं, है ना। इन चीजों के बारे में बहुत धीरे धीरे धीरे, मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा बहुत धीरे धीरे ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग एक मशीन लर्निंग को समझते हैं। एक्चुअली मशीन लर्निंग होती क्या है, मशीन एक्चुअली क्या होता है। मशीन लर्निंग के आगे वाला स्टेप ही आपका डीप लर्निंग है ना। मशीन लर्निंग के बाद ही आने वाला स्टेप ही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसा हमारे प्रोग्राम का नाम है डीप लर्निंग फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो डीप लर्निंग को समझने के पहले आपको मशीन लर्निंग को समझाया गया। यहाँ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझाया आपको डिटेल में डेवलपर के साथ में जाएगा। ठीक है, मशीन लर्निंग देखिए, कोई भी एक चाइल्ड रहता है या बच्चा रहता है ना, वो एक एक्सपीरियंस से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल ये कि जैसे हम लोग घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं, साल के 2 साल के, ये दिखते हैं कि हम लोग मोबाइल को यूज करते हैं। मोबाइल पे आप कई बार देखते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, साल 1.5 साल वाले बच्चे, वो लाइक यूट्यूब अपने आप ऑपरेट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज अपने आप, फॉर एग्जांपल ऑडियो मैसेज की बात करें, कल शायद मुझे काफ़ी देर 5 मिनट बाद पता चला था कि मेरी बिटिया के हाथ में मोबाइल था, और बिटिया छोटी है, 3 साल की है, और वो वॉइस कम्युनिकेट करती है व्हाट्सएप पे घर से, जो उसके दादाजी हैं या उनके हैं, कि यहाँ से एक जो व्हाट्सएप पे एक आइकॉन रहता है साउंड वाला, वहां से कल ग्रुप पे भी एक मैसेज आ गया था। तो उस बच्ची ने मुश्किल से मुश्किल 2-3 बार देखा होगा कि ऑडियो को कम्युनिकेट कैसे करना है, या फिर एलेक्सा से कम्युनिकेट कैसे करना है। और ये लगभग लगभग वो पिछले साल भर से कर रही है, जो लगभग 2 साल की एज थी। कहने का मतलब है कि एक जैसा चाइल्ड चीजों को सीखता है ना, मशीन लर्न करती है, उसी तरीके से रोबोट, रोबोट मतलब मैं इसकी बात करूं तो ये रोबोट है, ये रोबोट ही है। अपने अंदर इस तरीके की फीलिंग्स मत लाना, कोई लाइक ह्यूमनॉइड टाइप का हो या कोई रजनीकांत टाइप की कोई मशीन हो तो ही हम उसको रोबोट मानेंगे। कोई भी एक मशीन डिजाइन फॉर स्पेसिफिक वर्क कॉल्ड रोबोट, चाहे आपकी वो रिस्ट वॉच हो, चाहे वो आपका फैन हो, ट्यूबलाइट हो, कोई भी सर्किट हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, वो एक रोबोट ही है। तो यहाँ पर जो मशीन लर्न करती है हमारी, वो डेटा के थ्रू लर्न करती है। अब आपके लिए डेटा क्या रहेगा, प्रोडक्ट का जो इमेजेस लेना और उनका एनालिसिस करना। तो ये बेसिक बिल्कुल नॉन टेक्निकल डेफिनेशन है कि जैसे बच्चा सीखता है एक्सपीरियंस से, उसी तरीके से मशीन सीखती है डेटा से। तो हम लोग उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है इससे परेशान मत होना, CNN है ना। जब भी हमें इमेजेस के बारे में डिस्कशन करना हो,
इमेज को लेके एनालिसिस करना हो, इमेज को लेके समझना हो, क्योंकि अभी हम जो डीप लर्निंग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा खेल आपका फेस डिटेक्शन, इमेज डिटेक्शन पे ही है ना। तो वहां पे आपको कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग का पार्ट आ जाता है। जैसे इस इमेज को देखो, आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, वो दो टाइप से इमेज दिख रही होगी, साइड फेस दिख रहा होगा, हाफ फेस भी डायरेक्टली दिख रहा होगा, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा। इस इमेजेस को देखेंगे तो आपको एक चाइल्ड भी दिखेगा और एक बुजुर्ग महिला भी देखेगी। तो इन चीजों को हमें कैसे समझना है, इन इमेजेस को एक्चुअली एनालिसिस करना, वो आपका डीप लर्निंग और एआई वाले पार्ट में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में 5.0 के बारे में। कुछ लोग 5.0 भी बोलते हैं, कुछ लोग 5.0 भी बोलते हैं। बेसिकली क्या है ना, हमारे यहाँ जैसा हम लोगों को पता है एग्रीकल्चर हमारा कोर डोमेन नहीं है, वो मैं आपसे ही सीख रहा हूँ, कुछ चीजें सीखने में लगे। वीट और कॉटन का ज्यादा हमारे यहाँ पे उत्पादन होता है, बोलते हैं ना कि भारत कृषि प्रधान देश है ना। फिर भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो ज्यादा होता है, मैन पावर ज्यादा है, बट हम टेक्नोलॉजीज भाई दूसरी कंट्रीज से पीछे रहते हैं, है ना। उसका कारण सिर्फ मात्र क्या है, हमने टेक्नोलॉजी को एक लेवल तक ही रखा है, और जैसे ही हम उसको इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं, टेक्नोलॉजीज को इसमें इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं, जब भी मैं आपको बताऊं ना, एक पेस्टिसाइड वगैरह के ड्रोन से पेस्टिसाइड वगैरह भी छिड़काव का हो रहा है, तो वो एग्रीकल्चर 5.0 में आ जाता है ना। इन चीजों को, टेक्नोलॉजीज को हमारे वर्क में, हमारे वर्क कल्चर में इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। जैसे मैं आपको अभी जो बात कर रहा था कि अभी जो हमारी डिवाइस है, देखिए हम लोग कहीं से कोई रेडीमेड प्रोडक्ट बना के आपको नहीं बता रहे हैं, हम लोग एक्चुअली जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। एक्चुअली जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अभी आप ही काफी सारी ऐसी चीजें सुन रहे होंगे, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ इसके बारे में किया है कि लाइक जो खेत वगैरह होते हैं इन पे दवाइयों का या पेस्टिसाइड का छिड़काव हम लोग ड्रोन से करने वाले हैं। हम लोगों का एनालिसिस ये भी कहता है कि हम लोग जो पेस्टिसाइड का छिड़काव करने वाले हैं वो भी हम क्रॉप की हेल्थ के अकॉर्डिंगली करें, है ना। मतलब ये है कि हमें लग रहा है कि इस क्रॉप पे ये डिसीज है तो ये वाला पेस्टिसाइड होना चाहिए। वो मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, बट वो मशीन के थ्रू पॉसिबल है। यदि मशीन डिटेक्ट कर ले कि हाँ इतने लेवल तक का इतना ही पेस्टिसाइड इतने एरिया में पहुंचना चाहिए, तो वो अपना एक कॉमन पेस्ट कैलकुलेशन वहां पे निकल आता है। ठीक है, ये कुछ तरीके ऐसी चीजें आप लोग को मार्केट में ये एक्चुअल है, रियल फैक्ट्स में है। ठीक है, ये वो हमारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, है ना। इसके बारे में हम लोग और एनालिसिस करेंगे, और इसके बारे में बताते टाइम अभी जो मेरे साथ सेकंड डेवलपर इन्वॉल्व हैं, ये डेवलपर आपके लिए इस मशीन के लाइव वर्क के बारे में बताएंगे। लाइक उसका एक वेब प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे कि वेब पे इन लोगों ने इस पर कैसे काम किया है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक आउटलाइन मैं आपको बता दे रहा हूँ। आउटलाइन ये है कि हमें एक प्रॉब्लम डोमेन देखना पड़ेगा कि समस्या क्या है, उसका एक फिर सॉल्यूशन प्रपोजल क्या है, फिर उसकी एक वर्ड फ्रेम है पूरी कि प्रॉब्लम मेरी सॉल्यूशन मिले, फिर हमने उसको किस तरीके से प्रपोज किया है। तो आप समझिएगा इस चीज को। देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि हमें क्रॉप में किस टाइप की डिसीज है उसको डिटेक्ट करना है, या हमें उसकी हेल्थ के बारे में कि भाई वो जो लीव्स है, फल है, फ्रूट है, वो हेल्दी है अनहेल्दी है, हेल्दी अनहेल्दी, फिर डिसीज के बारे में हम बताएंगे। आपको कभी जरूरत लगती है, ऐसा लगता है कि भाई कुछ जो प्रेजेंटेशन आपके लिए चल रहा है ये शेयर्ड होना है, तो आप एक बार कोऑर्डिनेटर जो स्वतंत्र सर हैं इनसे कांटेक्ट कर लिया करें, वो बेसिकली ऑफिशियली भी हैं इसमें। तो यदि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हम जो यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको यदि लगता है तो वो आपके लिए शेयर भी हो जाएगा। कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल नहीं है जो आपको पढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग इज ओपन, है ना। कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। हाँ, कुछ चीजों के कोड्स वगैरह आप ले लेंगे, यदि मैंने हम कोई आईओटी का प्रोडक्ट बता रहे हैं आईओटी के, तो उसके कोड वगैरह देने में हमें दिक्कत होगी क्योंकि वो इन हाउस प्रॉपर्टी होती है, बट ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह शेयर करने में हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि ये सेशन हुआ है तो हमें शेयर होना चाहिए। चलिए, अब देखना, इसको मैं एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसको करने के लिए फ्लो क्या है कि भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते टाइम हम लोगों ने डेटा कलेक्शन किया। डेटा कलेक्शन मतलब हमने इमेजेस को कलेक्ट किया। हमारे प्रोडक्ट का जो काम है वो करने के लिए वो डेटा कलेक्शन, टेक्निकल वर्ड उसका डेटा कलेक्शन है। उसके बाद क्या किया है, अपलोड टू सी पैनल। अपलोड टू सी पैनल का मतलब ये है बेसिकली जो डेटा हमारी डिवाइस ने कनेक्ट किया है
उस डिवाइस से अगली रिक्वेस्ट की गई है कि आप ये डेटा वेब पे डाल दें, वेब सर्वर पे डाल दें। cPanel का मतलब सर्वर है, और वो डिवाइस अपने आप डाल देगी। डिवाइस को पता है क्या करना है, कोई हमें बटन प्रेस नहीं करना है, वो वहां से इमेजेस लेगी और उनको सर्वर पर डाल देगी। अगला क्या है, लोड मॉडलिंग पेज, कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सेशन को कंडक्ट करते टाइम बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन टेक्निकल वर्ड्स को आपको किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराना है कि मॉडल लर्निंग क्या है, मॉडल ट्रेन होने क्या है, लोड मॉडलिंग क्या है। मॉडलिंग बस कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ डेटा है, उनको हमने लोड कराया और फिर क्या करा दिया, प्री प्रोसेसिंग करा दी, है ना। डेटा को हमने, जो मॉडल्स बने हैं उनको प्री प्रोसेस करा दिया। अभी डेवलपर आपको बताएंगे कि कैसे कराया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हुए हैं। अगला मॉडल उनके क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन मतलब कि वो जो है ना कि किस टाइप की क्लासिफिकेशन दिए हैं हम लोगों ने, किस किस टाइप की, फ्रूट्स के लिए क्या क्लासिफिकेशन दिया है, आपके लीव्स के लिए क्या क्लासिफिकेशन दिया है, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, जैसा फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लीव डिटेक्शन, वो वाली चीज। और ये मॉडल क्या करेगा, डिसीज डिटेक्ट करेगा, और डिसीज डिटेक्ट करने के बाद ये आपको रिजल्ट दे देगा और काम हो जाएगा। तो बेसिकली जो मैं आपको बार बार ये प्रोडक्ट दिखा रहा था, फाइनली उसकी वर्किंग फ्लो ये है, वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। और फिर वो वही मैं बोल रहा हूँ, ये इस तरीके से काम करेगा। इसका एकमात्र कहने का मतलब ये है कि इन चीजों को ऐसे ही हम लोग ले जाएंगे। 30 सेकंड का मैं पॉज ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो थैंक यू, आपने किया। ये वाली पार्ट स्टार्ट और ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को समझ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये चीज थोड़ी बहुत आपको समझ में आई, टेक्निकली ना जाए तो? हेलो कुलदीप। यस सर। हाँ मैम, आपको समझ में आया जो मैं आपके साथ डिस्कस किया ये चीज? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस चीज को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सीएनएन क्या होता है, सीएनएन बेसिकली कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क होता है। इस चीज को समझाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। इनपुट इमेज है ना, इस इमेज के बारे में कुछ एनालिसिस किया गया है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बाद में ही बताएंगे। कस्टम में फिर वही चीज, लाइक आपकी इमेजेस के बारे में एनालिसिस करना, लाइक इमेज है फिर उसकी लेवलिंग करना, उसको मॉडल में बनाना, एक ट्रेंड मॉडल बनाना, फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना। ये भी थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है, सीएनएन कस्टम। उसके बाद एक एक्यूरेसी का ग्राफ क्रिएट करना कि पहले कैसा था, बाद में डिटेक्ट करने के बाद ग्राफ क्या है, थोड़ा सा ये टेक्निकल आ जाता है। तो ये इस तरीके की चीजें आपके लिए उपयोग होगी। फ्लो चार्ट आपको बताया जाएगा, सीएनएन के बारे में बताया जाएगा, कस्टम के बारे में बताया जाएगा, एक्यूरेसी के बारे में बताया जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर कोई वेब फ्रेम, वेब फ्रेम का मतलब ये है कि हम एक किसी वेबसाइट को आपके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे। उस वेबसाइट में सारा डेटा रहेगा, जैसे भी एक वर्ड यूज किया था ना, cPanel या सर्वर, सर्वर के बारे में एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट रहेगी। उस वेबसाइट में सारे ऑप्शंस रहेंगे जहां पर डेटा कलेक्ट हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, मैं उसको इस तरीके से कहने जा रहा हूँ कि मैं अभी बैठा हूँ अपने ऑफिस में, आईटी पार्क में, और मैं वेब को लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा एक वेबसाइट का लॉगिन है, मैंने उसको लॉगिन कर लिया जैसे दिख गया। अब मेरी डिवाइस वहां पे क्या काम कर रही है, जैसे हम लोग सीसीटीवी से फुटेज देखते हैं ना, मैंने डिवाइस को यहाँ से कमांड दी कि डिवाइस आज 10 डेज हो गए हैं, मुझे आज की फ्लाइट दीजिए आप।
तो हमने यदि एक लाइक सपोज दैट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, हमने 100 स्क्वायर फीट के एरिया में एक डिवाइस को लगा रखा है और उस डिवाइस से बोला है हमने कि हमें अलग अलग एंगल से इमेजेस दीजिए। डिवाइस मतलब स्टैटिक है, तो डिवाइस को पता है इस एंगल से लास्ट टाइम इमेज दी थी, तो जो पौधा या जो आपका प्लांट है लास्ट टाइम जिस पोजीशन पर था तो आज भी वो उसी पोजीशन पर होगा। 10 दिन बाद कोई ना कोई इंप्रूवमेंट तो पौधे में हुआ होगा, है ना। या फिर मैंने बोला 1 महीने बाद उस एरिया की आप, उस प्लांट की आप मुझे इमेजेस दीजिए। तो ये डिवाइस क्या करेगी, इकट्ठा ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग 3 फ्लाइट ले रहे हैं एक महीने की, हम लोग हर 10-15 दिन में फ्लाइट लेंगे और फिर उन इमेजेस का कलेक्शन करते जाएंगे। और ये इमेजेस ऐसी नहीं होती हैं कि 100 200 300 400 500 लैक्स में इमेज होती हैं, 30 लाख इमेजेस, 20 लाख इमेजेस, 15 लाख इमेजेस। इतनी इमेजेस का कलेक्शन करके हम लोग धीरे 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 उनकी ग्रोथ पे काम करते हैं या उनको एनालिसिस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग डेली एक स्लाइड की 2 या 1 इमेज डेली लें और इनको फिर एनालिसिस करें। पर इस फ्लाइट्स को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी तो डिवाइस स्टैटिक है तो हमें दिक्कत होती है। जब ये डिवाइस फ्लाइट, ठीक है, तो अभी इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। उसके बाद ये वही सारा डिस्कशन है सोयाबीन पॉड के बारे में, है ना। ये देखो यहाँ से इसमें एक बताया गया है कि हम लोगों ने किसी ये इमेजेस ली थी और इसकी हरी पीली पत्तियां हैं, इनके बारे में एनालिसिस किया था। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि हमें यहाँ से इनपुट देना है और आउटपुट लेना है। ये अभी आपको लाइव करके दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसके जो फ्रूट हैं, फल हैं, उसके बारे में किया गया एनालिसिस, है ना। जो बताया था अभी की एक स्लाइड आपको शो की थी जिसमें बताया था कस्टम, कस्टम में एक बताया गया था कि लेवल्ड इमेज, इमेज को हमें लेवल्ड करना है। तो वो ये है लेवल। देखिए फल को अपने आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया है ना, उसके बारे में ये चीज करेगी। फ्रूट के फल उसके यदि इसके बारे में बात करते हैं, फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ फ्लावर ही डिटेक्ट कर रहे हैं, ये कोई दूसरा फ्रूट डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं लेवलिंग करना। जैसे आज हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है, जो ट्रॉली बैग्स वगैरह होते हैं, वो ट्रॉली बैग जो है ना ह्यूमन को फॉलो करें, है ना, और उसी को फॉलो करें। तो उसमें भी हम लोग कुछ इस तरीके से ही इमेज डिटेक्शन लगाने वाले हैं। ये वही प्रोडक्ट आउटपुट यहाँ से अपन को मिलेगा, उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं वो हमें शो होंगे और इस तरीके से एक एनालिटिकल व्यू बन जाएगा यहाँ का। एनालिटिकल व्यू में यही चीज रहेगी बेसिकली कि हमने R2, ये बेसिकली स्टेटेज हैं, R1 R2 R3 R4 R5, इन 5 स्टेट में हमें क्या एनालिसिस मिला और वो एनालिसिस क्या बोलता है, उनके सारे हमें ग्राफ्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहे होंगे या कोई इमेजेस दिख रही होंगी, तो इनको देख के हमें थोड़ा सा हेजिटेट नहीं होना है कि ये क्या बताया जा रहा है। ये सिर्फ इस तरीके की चीजें ही डीप लर्निंग में आती हैं। मतलब हम जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में अप्लाई करने वाले हैं, तो ये सारे टेक्निकल वर्ड्स से आपको एक बार इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा और हम धीरे 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 करके ये चीजों को करते चलेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑन इंट्रोडक्शन ऑन डीप लर्निंग ऑन स्मार्ट एग्रीकल्चर, कि हम लोग इस सेशन में क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ठीक है। मिस्टर शिव आप वहां पे हैं? हेलो। हेलो। हाँ हेलो। गुड इवनिंग। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ आपकी वॉइस काफी कम आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ठीक है। देखिए ये हमारा डिस्कशन हो गया है, अब आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है ना। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स आप तक यदि मेरी वॉइस पहुंच रही हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने आपको एक इंस्टाग्राम का वीडियो लिंक भेजी है आपके ग्रुप पर, आप प्लीज उस वीडियो के थ्रू गो थ्रू कर लीजिए एक बार, प्लीज उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। और जो इंस्टाग्राम का सोशल अकाउंट है, यदि आपको ये चीज अच्छी लगती है तो आप इस ग्रुप पे इसको कंटिन्यू फॉलो करके जुड़े रहिए, ताकि आपको जो भी अपडेट हैं वो मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपके पास यदि 2 मिनट का समय हो, 1 मिनट का तो वीडियो रहता है इंस्टाग्राम पे, आप प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको क्या समझ में आएगा ये भी चला जाएगा। और यदि आपको इंस्टाग्राम ये रोबोटॉनिक्स इंडिया का अकाउंट सही लगता है तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, यस सर। है ना। प्लीज कुलदीप, ऑल पार्टिसिपेंट प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। यस सर।
तो वीडियो एक बार हो जाए तो आप प्लीज बता दीजिएगा। मतलब किसी को सेकंड टाइम देखना हो तो सेकंड टाइम भी देख लें, हमारे पास समय है, बट एक बार आप बता दें। चैट बॉक्स का यूज करें साथ ही साथ में। यस सर, देख लिया। देखिए, ओके, थैंक यू। तो नाउ मिस्टर शिव, आप जो अपना प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से और लाइक जो भी हम लोग इनपुट्स देने वाले हैं उनको नॉन टेक्निकल फॉर्म में समझाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना जाएं, नॉन टेक्निकल फॉर्म में। So, good evening, everyone. Myself, Siu Prashad Suryavanshi. I am currently working on Robotronics India since 2020. So, it is our soybean crop disease detection project. इस प्रोजेक्ट में बेसिकली एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच थी जिसमें सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हेलो, नाउ एम नाउ आई इट्स ओके, ऑडिबल? नाउ इट्स ओके, ओके, यस यस। सो इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट में एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच थी कि एक सोयाबीन की ग्रीड में या एक सोयाबीन के खेत में आप कैसे डीप लर्निंग और एआई को इंक्लूड कर सकते हो, ओवरऑल प्रोडक्शन को देखने के रिलेटेड, प्लांट की ग्रोथ को देखने के रिलेटेड, इस पर्टिकुलर ग्रीड में जो भी डिसीज़ है इस डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के रिलेटेड, पॉड हो गया, फ्लावर हो गया, इन चीज़ों को काउंट करने के रिलेटेड एक पूरा का पूरा एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच को हमने एज अ इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, ए आई ओ टी इज़ बेसिकली ए आई प्लस आई ओ टी। आई ओ टी इंटरनेट ऑफ थिंग, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है आपके पास, और ए आई में आपके पास जो भी आपने डेटा कलेक्ट हुआ है एज अ ए आई में, आप जो जिस टाइप का भी डेटा है एज अ इमेज की जितनी भी क्लासेस रहेगी, आपके डिसीज़ के रिलेटेड जितनी भी क्लासेस ऑफ इमेज मेरे पास अवेलेबल है, उसे मैं ट्रेन करूँगा, और ट्रेन करने के बाद उसे एक IoT डिवाइस के साथ में मर्ज करके एक वेब पोर्टल पे वही रिजल्ट को शो करने वाले हैं। ठीक है, सो जैसे सर ने आपको ये बताया था इन अप्रोच में कि कैसे CNN और आपके कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल वर्क करते हैं, सो जस्ट पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार CNN की जो अप्रोच है इसे इंट्रोड्यूस कर दूं। ठीक है, तो एज अ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में आपको ये पर्टिकुलर एक इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज को देखने के टाइम में आपके माइंड में एज अ डीप लर्निंग एआई में बस एक ही अप्रोच आपके माइंड में रखना पूरे 15 डे के करिकुलम में, कि आप कैसे ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर रहे हो। ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना है। ये पर्टिकुलर इमेज आपको जो शो हो रही है, इस इमेज को देख के आपका माइंड सबसे पहले क्या रिएक्ट कर रहा है? आपके माइंड ने इस इमेज में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किए हैं। फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किए हैं यानी कि इस इमेज में आपके पास फीचर्स हो सकते हैं कि आई, नोज, लिप्स, चिन, ईयर, ये जितने भी फीचर्स है आपने, आपके माइंड ने सबसे पहले उसे निकाला है इस इमेज में से। यस या नो? यस सर। है ना? यस सर। जब आपने इन फीचर्स को निकाल लिया है तब फिर वापस आपके माइंड ने उन फीचर्स को क्लब करने का कोशिश किया है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ये जो इमेज थी, इस इनपुट इमेज में से मैंने 10, 12 या 15 या 32 के अराउंड कुछ फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। जितने भी आपके माइंड ने फीचर्स को एक बार में देख के निकाल पाया उसने निकाले हैं।
फिर उसके बाद में उन फीचर्स को आप क्लब कर रहे हो। ठीक है, क्लब कैसे कर रहे हो वापस, कि हाँ अगर आई का अलाइनमेंट यहाँ पे है, नोज यहाँ पे है और लिप्स यहाँ पे है, तो ये थोड़ा फ्रंटल व्यू है, किसी एक इमेज का फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको, किसी फेस का एक फ्रंट व्यू दिख रहा है। यस या नो? ठीक है। वहीं पे फीचर्स, जैसे आपके पास एक फीचर, अगर यहाँ पे जो नोज का फीचर है, इस नोज के फीचर को अगर आपने एज अ प्रायोरिटी दे दिया होता कि अच्छा नोज का फीचर ऐसा है तो, और लिप्स का फीचर ऐसा है, तो यहाँ पे आप इसे एज अ राइट वर्ड कुछ देख रहे हैं ऐसा आप समझ पाते हैं कि यहाँ पे कुछ राइट के साइड में दिख रहा है। यस या नो? राइट या लेफ्ट के साइड में थोड़ा सा अलाइनमेंट आपको हाँ फेस सर, का, लेफ्ट है ना, लेफ्ट वर्ड। सर। तो हाँ, बोथ आप, साइड से। यस, है ना, तो बस आपका माइंड जैसा वर्क कर रहा है ना, आपका माइंड भी इसी चीज़ों, इन चीज़ों को ऐसे ही समझता है कि सबसे पहले कोई भी इमेज आती है, उस इमेज में से आप फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो कि ये पर्टिकुलर इतने फीचर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। एज अ, हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड इतने एक्सपर्ट नहीं है जितने आप एक्सपर्ट हो, तो वो जो फीचर्स है इस पर्टिकुलर इमेज में क्या डिसीज है, उसका एक पर्टिकुलर कलर चेंज हो जाना या बर्न हो जाना, ये जो फीचर्स है इन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना। जब एक बार वो फीचर्स निकल गए हैं, उन फीचर्स को आप क्या करते हो, आपके मॉडल को इस टाइप से ट्रेन कर देते हो कि ये फीचर्स मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, आप बोल दोगे कि ये पर्टिकुलर ब्राउन स्पॉट के रिलेटेड डिसीज है, या ये इसमें कोई भी इस टाइप के फीचर्स नहीं मिले हैं, हेल्दी फीचर्स है तो हेल्दी इमेजेस। ठीक है, सो जस्ट फंक्शनैलिटी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही है। सर। ओके, ठीक है। सो अब हम हमारे प्रोजेक्ट के ओरिएंटेड इस पे आते हैं। उसके पहले जस्ट ये एक CNN के रिलेटेड जो चीज़ें हुई थी, इसे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल पे समझते हैं कि आपके पास अगर एक इनपुट इमेज जा रही है, ये जो आपके पास एक इनपुट इमेज जा रही है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, ये जो बीच का पूरा पार्ट है, मैं सिर्फ इन पार्ट को ही आपके 15 डेज के करिकुलम में आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करवाना है कि ये जो बीच का ये जो पार्ट हो रहा है, कि कैसे इमेज के ऊपर आप स्कैनिंग कर रहे हो और कैसे इन डिसीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो ये जो बीच का पार्ट है इसे ही आप डीप लर्निंग बोलते हो। ठीक, ठीक है, या DCNN बोलते हो, है ना। डीप लर्निंग यानी कि एक डेंस पूरा नेटवर्क, ये जो नेटवर्क बन रहा है, आप इस नेटवर्क में आपका माइंड जैसे वर्क करते हैं ना, न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में, कि एक पर्टिकुलर न्यूरॉन यानी कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी, वहां से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, तो कैसे एक पूरा का पूरा डेंस नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम बहुत ब्रीफ में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, वहीं पे कस्टम के रिलेटेड जो चीज़ें हो रही है, कस्टम कैसे, कि आपको एक इमेज को आपने सबसे पहले तो CNN में आपको समझ आ गया कि इमेज को आप क्लासेस वाइज ट्रेनिंग करने वाले हो, कि अगर सोयाबीन रस्ट इमेज है तो रस्ट इमेज के रिलेटेड आपने ट्रेनिंग कर दिया है, येलो मॉसिक है उसमें वायरस तो उसके रिलेटेड ट्रेनिंग कर दिया, ऐसा ट्रेनिंग कर दिया। और कस्टम में आप क्या बताते हो, कस्टम में बताते हो कि इस पर्टिकुलर जो फ्लावर टाइप की चीज़ें दिख रही जिसमें आइरिस टाइप का थोड़ा कलर है, बैगनी टाइप का जो थोड़ा सा कलर दिख रहा था, ठीक है, इसे फ्लावर बोलते हैं, सोयाबीन फ्लावर बोलते हैं। इसे आप लेबल कर दे रहे हो। जब आप इसे लेबल कर दे रहे हो तो आपका मॉडल क्या हो जा रहा है, ट्रेन हो जा रहा है उन चीज़ों पे। ठीक है, जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसे उस आइरिस टाइप के कलर का या बैगनी जो वो कलर है उस टाइप की कोई फ्लावर दिखाते हो, तो उसे वो प्रिडिक्ट करता है कि ये वो सोयाबीन फ्लावर है। सोयाबीन पॉड का या फ्रूट जो रहता है उसका कलर एक मैच्योर पॉड का कलर अलग हो जाता है। ठीक है, उसके रिलेटेड अगर आपने ट्रेनिंग कर दिया तो उसे वो आइडेंटिफाई कर लेगा पूरे इमेज में कि यहाँ पे ये अवेलेबल है। ठीक है, सो कैसे ये चीज़ें वर्क होती है, यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है, आपका डेटा, आपने जो डेटा कलेक्ट किया था उस डेटा को सी पैनल पे अपलोड किया जाता है। तो जब आपका डेटा एज अ सी पैनल पे अपलोड हुआ है
तो क्या हम उस सी पैनल का एक्सेस ले सकते हैं क्या, क्या हम उस सी पैनल को देख सकते हैं क्या? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि एज अ सी पैनल के रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी ऐसी रहती है कि हम उसे नहीं देख पाते हैं। आई मीन आईडी पासवर्ड वगैरह लग के ही आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सी पैनल का डेटा हम ऐसा शो नहीं कर सकते। तो इसलिए एक छोटा सा बीच में एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है 000 वेब होस्ट करके, जिसमें आपका डेटा एज अ शो करने के रिलेटेड कि कैसा शो हो रहा है, यहाँ पे इमेजेस कैसे क्लिक करी थी तो वो वहाँ पे वो कैसे दिख रही है, ये चीज़ें शो होने के लिए 000 वेब होस्ट है। तो वहाँ पे ये चीज़ें दिखा देख सकते हैं एज अ टेस्टिंग डेमो टाइप से। ठीक है, आपको डिवाइस के रिलेटेड चीज़ें क्लियर है कि हमारा डिवाइस कैसा दिखता है? हमारा डिवाइस कुछ इस टाइप से दिखता है। ये जो डिवाइस है इसे हम ग्रिड के किसी सेंटर पोर्शन पे बिल्कुल स्टेबल कर देते हैं, और इसके बाद में इसमें पावर बैंक भी लगा हुआ है, और यहाँ से हाइट वगैरह मेजर हो जाता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू हाइट मेजर हो जाता है। ठीक है, आईओटी डिवाइस है टोटल। इसमें एक पावर बैंक लगा हुआ है जो कि चार्जिंग के रिलेटेड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो नेक्स्ट टाइम ये इमेजेस कैप्चर करके डायरेक्ट आपके सी पैनल पे अपलोड कर देता है। तो हम सी पैनल को हम देख सकते हैं क्या? तो सी पैनल को नहीं देख सकते, लेकिन एक जस्ट एक थोड़ा सा यूआई टाइप से एक 000 वेब होस्ट पे भी सेम उसी सी पैनल का डेटा को रख के हम इसे जस्ट समझने के रिलेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक मल्टीपल फ्लाइट्स हो सकती है। फ्लाइट 1 आप जब एकदम बिल्कुल ग्रोथ हो रहा था तब के टाइम आपने इमेजेस कैप्चर करी, फिर फ्लाइट 2 में आपने इमेजेस कैप्चर करी, फ्लाइट 3, ऐसी मल्टीपल फ्लाइट्स में आपने इमेजेस कैप्चर करते गए, और हाइट के रिलेटेड भी इमेजेस एज अ मल्टीपल फ्लाइट में कैप्चर करते गए। दिख रहा है? तो ये जैसे ये इमेजेस हैं, तो ऐसे डिवाइस के रिलेटेड जो शुरू से अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा पूरा एक ग्रिड में जैसे जहाँ पे ये इमेजेस है, इस पर्टिकुलर फ्लाइट में ये इमेजेस इस पर्टिकुलर फोल्डर में है। तो ये जो ट्रेनिंग के टाइम की इमेजेस है, ये वो इमेजेस है कि आपके डेटा को ट्रेन करने के रिलेटेड आपने मल्टीपल फ्लाइट्स ऐसा लिया था। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से ऐसा सी पैनल के थ्रू ये चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे डेटा कैसे आता है? यहाँ पे डेटा आता है वो आपके डिवाइस के थ्रू। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही मल्टीपल फ्लाइट्स और मल्टीपल एंगल्स, ये जैसे ए बी सी डी दिख रहा है ना, जैसे अब ध्यान से समझिए, आपका जो एक डिवाइस है, इस डिवाइस को आप सेंटर में भी रख सकते हो या इनके कॉर्नर्स में रख सकते हो। मैं पूरे ग्रिड को एक साथ स्कैन करने के रिलेटेड मैं इसे एक कॉर्नर में अगर सेट करता हूँ, ए कॉर्नर ए में सेट करता हूँ, तो कॉर्नर ए के रिलेटेड मल्टीपल फ्लाइट्स होगी मल्टीपल ग्रोथ स्टेजेस पे। तो मल्टीपल स्टेजेस पे जो हाइट कैप्चर हो रही है, मल्टीपल स्टेजेस पे जो इमेजेस कैप्चर हो रही है ए एंगल में, वो पूरा डेटा इसमें आएगा, बी एंगल का डेटा इसमें आएगा। तो एक पूरा एक यूआई टाइप से बन जाता है कि आपको इमेज कैप्चर करते टाइम किस इसमें आपको सेंड करना है डेटा। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना डेटा सी पैनल पे देख पाते हो। ठीक है, तो जो फ्लो चल रहा था मैं आपको इस फ्लो को ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसमें आपने डेटा कलेक्ट करने के बाद में अपलोड किया है किस पे, सी पैनल पे। ठीक है, ठीक है, ओके। सो जैसे अब हम हमारा जो यूआई है, जो वेब फ्रेमवर्क है, इसे ऑन कर रहे हैं। इस वेब फ्रेमवर्क में क्या हो रहा है? इस वेब फ्रेमवर्क में आपने एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का यूज़ किया है। डेटा जो आपके पास कलेक्ट हुआ है उसके ऊपर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग से कंप्यूटर विजन का यूज़ करके सीएनएन आर्किटेक्चर बनाया है, सीएनएन मॉडल बनाया है। उस मॉडल को आपने यहाँ पे स्टोर करके रख दिया है। ठीक है, सीएनएन मॉडल यानी कि वो एक ऐसा मॉडल है जो इमेजेस को देख के समझ जाता है कि कोई भी लीफ को देख के समझ जाता है कि इसमें किस टाइप का वायरस है, किस टाइप की डिसीज है। ठीक है, ये जो ट्रेन मॉडल रहेगा वो बैकएंड में हम रख देंगे, और एज अ वो मॉडल की जो आउटपुट आएगा हम उसे एज अ नॉन प्रोग्रामर तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए एक थोड़ा यूआई टाइप से बना देना
कि कुछ एक पर्टिकुलर क्लास वाइज ज़्यादा डेटा अगर मिलता है हमें, तो हम उसे बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर मॉसिक वायरस के रिलेटेड डिसीज़ है, या येलो वायरस है, या हेल्दी लीफ है, जो भी आपका आउटपुट यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक फ्रंट यूआई है जिसमें आपके ये कार्ड्स वगैरह ऐड है, जिसमें आप यहाँ से डायरेक्ट आपके मॉडल्स पे जंप कर सकते हो। फ्लावर मॉडल है, लीफ मॉडल है और पॉड मॉडल है। तो फ्लावर और पॉड, ये दो एक ऐसे मॉडल है जिसमें कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लगा है। कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के रिलेटेड अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि यहाँ पे आपने क्या किया है, ये कलर थोड़ा सा अलग रहता है फ्लावर का ना, तो ये चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाती है इमेजेस, कि एक पर्टिकुलर इमेज में ये फ्लावर कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो कस्टम मॉडल यहाँ पे ट्रेन हुए हैं फ्लावर और पॉड के रिलेटेड। वहीं पे लीफ में तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। लीफ में जो आपका वायरस मिल रहा है उसके रिलेटेड आपने क्या ट्रेन किया है, CNN आर्किटेक्चर, है ना। क्लियर हो रहा है एनीवन? कुलदीप, यस यस सर। क्लियर हो रहा Yes, है? sir. ओके, ठीक है। थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। ओके, जी जो लीफ के रिलेटेड हमारा मॉडल है वो CNN मॉडल है। बाकी ये जो कलर यहाँ पे, क्योंकि एज अ फ्लावर की बात करो तो फ्लावर में भी एक अलग आइरिस टाइप से कलर रहता है, तो इसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपका जो पॉड रहता है, पॉड में भी एक कलर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैच्योर पॉड का कलर अलग ही दिखता है। ठीक है, तो इसे इजीली पूरे ग्रिड में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इनके रिलेटेड कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और बाकी के रिलेटेड क्या है, आपके कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क मॉडल ट्रेन किए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ से भी आप आपके मॉडल पेज पे जंप हो सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपके नेव बार में यहाँ पे मॉडल करके क्लिक है, उस पर आप क्लिक करोगे। आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो आपका बैकएंड में ये मॉडल पेज लोड हो गया है। ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं। अब यहाँ पे आपके अपलोड हो गया था डेटा सी पैनल पे, और सी पैनल पे डेटा अपलोड होने के बाद में आप यहाँ से अपने मॉडलिंग पेज पे भी आ चुके हो। ठीक है, ये आपका मॉडलिंग पेज है जो कि आपके पॉड, लीफ, फ्लावर और एक ऑल करके रेडियो बटन है जो तीनों को एक साथ प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, कि एक हो सकता है ना कि आपका कितना, यानी इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपके अगर फ्रूट आ जाते हैं तो उसकी डिसीज की क्लासेस चेंज हो जाए। ठीक है, तो जितना अच्छा आप यानी ओवरऑल चीज़ें ऐसी हैं CNN के रिलेटेड कि आप जिस टाइप का डेटा दोगे, जिस भी टाइप का डेटा एज अ मल्टीपल स्टेजेस है जिसमें फ्लावर है और इसमें इस टाइप की डिसीज रहती है, तो मॉडल और कंप्यूटेशन पावर लगाने की चीज़ें दूसरी होती है, लेकिन जो आप जिस टाइप का डेटा दोगे उस टाइप से वो मॉडल ट्रेन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑल वाला जो सेक्शन है जिसमें फ्लावर और ये चीज़ें मिक्स अगर होती है तो फिर उसे वो आइडेंटिफाई कर पाता है इजीली। ठीक है, आगे देखते हैं आगे ये कैसे वर्क कर रहा है। वर्क करने का सिंपल सा अप्रोच है, आपका डेटा जो रहता है सी पैनल पे अपलोड है, सी पैनल से आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है, आप मॉडलिंग पेज पे आ चुके हो। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी सिलेक्ट करते हो, लेकिन यानी मॉडल, लीफ या फ्लावर कुछ भी सिलेक्ट करते हो और बैकएंड में आपके पास से कोई इमेज पास नहीं करते हो, तो डेटा कहाँ से उठ के आता है, डेटा आपके सी पैनल से उठ के आता है। अगर मैंने डायरेक्ट इस प्रिडिक्ट बटन को क्लिक किया तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। डेटा कहाँ से उठ के आ रहा है, डेटा मेरे सी पैनल से उठ के आ रहा है। ये मेरी लास्ट इमेज थी जो कि कैप्चर हुई थी। ठीक है, ये इमेज कैप्चर हुई थी और इस इमेज में आप देख रहे हो तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट एज अ पॉड कुछ भी नहीं है, तो इसे 0 असाइन किया हुआ है, दिख रहा है। तो ये डेटा कहाँ से कैप्चर हो रहा है, डेटा आपके सी पैनल में से, फोल्डर ए में से, फ्लाइट 1 में से आखिरी इमेज है ये। आखिरी इमेज यही है, देख लेते हैं, ये देखिए। क्लियर हो रहा है? ऐसा हो सकता है कि आपके पास टेस्टिंग इमेज के रिलेटेड जो आपका डेटा है वो आखिरी डेटा हो, तो आप उसे कहाँ से लेके आओगे, तो यहाँ से लेके आओगे। ठीक है, जब अगर आप कुछ भी चेक नहीं करते हो, कुछ भी आप यूजर इनपुट नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट आखिरी इमेज आपका यूजर इनपुट में आ जाती है जो आपके डिवाइस ने कैप्चर करी थी। ठीक है, ओके।
चलो, बाकी अगर आप कोई भी कस्टम के रिलेटेड चीज़ें करते हो, जैसे इस पर्टिकुलर इमेज में ये पॉड आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ पे पॉड के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये पॉड को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि कहाँ पे पॉड पॉड है और कितने परसेंट वो एक्यूरेट है कि ये पॉड है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ है। क्लियर हो रहा है? तो ये एक कस्टम मॉडल कैसे रन हो रहा है बैकएंड में, आप ये इसका रिजल्ट देखिए। बैकएंड में ये एज अ यही चीज़ है, वेबसाइट सर्वर पे रहती है तो ये कोड नहीं देख पाते, लेकिन बैकएंड में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये देखिए 96% ये बताना चाह रहा है कि ये एक पॉड है। ठीक है, वहीं पे मैं यहाँ से भी होम पेज पे जा सकता हूँ और मॉडल पेज पे जा सकता हूँ। तो अगर मैं मॉडल पेज पे वापस रिडायरेक्ट होता हूँ, ठीक है, तो वापस मैं अपने मॉडल पेज पे आ जाऊँगा। ये जितने भी डीप लर्निंग मॉडल रहते हैं ना, थोड़े से हैवी मॉडल्स होते हैं। तो जैसे आपका एक सिंपल स्टैटिक पेज आपने देखा होगा, तो बहुत जल्दी जल्दी आप उन एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि बैकएंड में पूरा डीप लर्निंग मॉडल लोड होता है। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मल्टीपल पेजेस ओपन करके रख लेता हूँ पहले से ही, तो नेक्स्ट टाइम वो जल्दी जल्दी रिजल्ट आपके शो हो जाएंगे। तो जैसे मॉडल के रिलेटेड यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 या 3 पेजेस। Well, ओके, सो अब जैसे वहाँ पे आप एक फ्लावर सिलेक्ट करके फ्लावर पे क्लिक करते हो और फ्लावर की कोई भी एक इमेज इसे पास करते हो, तो आपका मॉडल इजीली क्या प्रेडिक्ट कर पाता है कि ये एक फ्लावर है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इमेज में जो बाउंडिंग बॉक्स बना रहा है, ये इमेज में उस पर्टिकुलर फ्लावर को आइडेंटिफाई कर पा रहा है और कितने परसेंट एक्यूरेट है कि हाँ 100% मैं एक्यूरेट हूँ। ये देखिए, यहाँ पे रिजल्ट बैकएंड में ज़्यादा अच्छे से शो होगा कि इतने परसेंट एक्यूरेट हूँ कि ये एक फ्लावर की क्लास है। वहीं पे अगर आप लीफ के रिलेटेड कुछ चीज़ें करते हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ लीफ की कुछ क्लासेस रखा हुआ है मेरे पास। एक अगर हेल्दी लीफ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसे ये क्या प्रेडिक्ट करेगा, एज अ डीप लर्निंग मॉडल है, तो वो इस चीज़ को क्या प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि इसके रिलेटेड एज अ ट्रेनिंग होते टाइम इस इमेज में क्या फीचर्स उसे मिले थे, उसके रिलेटेड वो अपना रिजल्ट शो करेगा यहाँ पे। वीडियो शो हो रहा है ना? यस सर। ये देखिए, हेल्दी सोयाबीन करके इसका इसने रिजल्ट दिया है। और इस पर्टिकुलर यानी बैकएंड में क्या हुआ होगा अभी तो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन बैकएंड में अभी जस्ट मैंने अगर वो आपको वो फेस वाली इमेज आपको बताई थी, तो फेस वाली इमेज में आपका माइंड कैसे लर्न कर रहा था, इस पर्टिकुलर इमेज में से वो फीचर्स को निकाल पा रहा था कि कहाँ कहाँ ये हेल्दी इमेज के रिलेटेड जो फीचर्स रहते हैं बिल्कुल उसमें ग्रीन रहेगा, कहीं पे भी कुछ बर्न नहीं रहेगा। तो उसे वो इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये हेल्दी क्लास है। ठीक है, यस वहीं पे अगर मैं किसी दूसरी क्लास को यहाँ पे चूज करता हूँ, कोई भी एक दूसरी क्लास जो हेल्दी नहीं हो, जैसे यहाँ पे मेरे को थोड़ा वायरस दिख रहा है, तो इसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर इमेज में ब्राउन स्पॉट है। ठीक है,
सो ये ब्राउन स्पॉट के रिलेटेड चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया है। फीचर्स क्या है यहाँ पे? कि फीचर्स ये है कि पर्टिकुलर ये लीफ में इस टाइप का थोड़ा सा बर्न अगर रहता है, या अगर उसके जितने भी लीव्स है वो बर्न है, तो आप उसे इजीली बोल पाओगे कि हाँ इसमें अनहेल्दी ये लीफ है। ठीक है, इस टाइप से हमारा मॉडल जो है ओवरऑल रन करता है। अगर मैं जैसे ऑल पे सिलेक्ट करता हूँ, और ऑल पे सिलेक्ट करने के बाद में कोई भी एक लीफ पीस में से सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाली लीफ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे वो उसका रिजल्ट शो करेगा। ऑल में ये देखिए अब बैकएंड में क्या हो रहा है। ऑल में जैसे मैंने क्लिक किया तो ये बैकएंड में आपका तीनों मॉडल को एक साथ सिलेक्ट करता है, लीफ के रिलेटेड क्लासेस बताता है, फिर उसके बाद में आपका पॉड के रिलेटेड क्लासेस बताता है, और फ्लावर के रिलेटेड आपका क्या बताता है, क्लासेस बताता है। ठीक है, तो ये देखिए आपकी लीफ की क्या क्लास है कि सोयाबीन ब्राउन स्पॉट है, और उसमें पॉड 0 प्रेडिक्ट हुआ है, फ्लावर 0 प्रेडिक्ट हुआ है। तो बैकएंड में ये जो डेटा है, ये डेटा हमारे लिए एज अ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस डेटा के ऊपर हम प्रॉपर एनालिसिस कर पाए, इस डेटा के ऊपर एक आपका मॉडल जो भी रिजल्ट दे रहा है इस डेटा को सेव कर पाए। तो हाँ, ये डेटा सेव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैकएंड में ये डेटा को एक कोई भी वर्ड फाइल में या CSV फाइल में आप स्टोर करते जाते हो। तो एट द एंड आप अपना एनालिटिक्स पेज पे देख पा रहे हो कि हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे। हमारे प्लांट की हाइट के रिलेटेड हो गया, या आपका जो भी ये इसका जो रिजल्ट आ रहा है इसके रिलेटेड हम हमारा रिजल्ट शो कर सकते हैं ओवरऑल कि हाँ क्या क्या रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पे जैसे प्लांट की हाइट का एनालिटिक्स व्यू है, ये R1 R2 और R3 जो आपकी स्टेजेस रहती है प्लांट की हाइट के, कि R1 स्टेज क्या रहता है, R2 स्टेज क्या रहती है, इन R1 स्टेज R3 स्टेज पे क्या हाइट थी, वो हाइट कैसे मेजर हुई थी। उस मल्टीपल जब आप फ्लाइट्स ले रहे थे तब आपने अल्ट्रासोनिक सेंसर से हाइट को मेजर किया था। तो उसका जो भी CSV है बैकएंड से वो डेटा आके यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सामने प्लॉट हो रहा है। ठीक है, सो ये आपका एनालिटिकल व्यू शो करता है कि आपके प्लांट की मल्टीपल ग्रोथ स्टेजेस पे क्या क्या हाइट रही थी। R2 स्टेज पे क्या हाइट था, वहीं पे आपके R1 R2 R3 और R5 स्टेजेस पे क्या हाइट था, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बेसिक कंसर्न यही रहता है हमारा कि एज अ देखो, हम एज अ डीप लर्निंग एक्सपर्ट है, हमें जिस टाइप का डेटा मिलेगा हम उस टाइप की ट्रेनिंग कर लेंगे। लेकिन ये जो प्रोग्राम हो रहा है इस टाइप के प्रोग्राम का बेसिक कंसर्न यही रहता है कि आप एज अ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हो, तो हमें आपके एंड पे भी कुछ ऐसे सजेशन चाहिए होते हैं कि हाँ जैसे अब यहाँ पे एक मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था कि आपकी जो पर्टिकुलर डिसीज रहती है, आपकी जो प्लांट के रिलेटेड जो मल्टीपल डिसीज आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्या इसमें अगर हाइट का कुछ रोल रहता है क्या? आई मीन अगर इसमें आपने फ्लावर या फ्रूट अगर आ जाते हैं तो क्या डिसीज की क्लासेस चेंज हो जाती है क्या? कुछ और डिसीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या उस टाइप से? तो एज अ एक्सपर्ट से हम यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। तो एज अ हम हमारे पास जो जितना नॉलेज है कि एज अ डीप लर्निंग मॉडल कैसे बनाया जाता है, आप जिस टाइप का डेटा दोगे हम उस टाइप का डीप लर्निंग मॉडल बनाएंगे। तो हमारा 15 डे का ये जो बूट कैंप है, ये जो पूरा वर्कशॉप है, हमारा पूरा का पूरा मोटिव बस यही रहेगा कि हम आपको इस लेवल तक लेके आ जाए कि आप इस मॉडल को बना पाओ, क्योंकि आपके पास डेटा बहुत सारा है, आपके पास मल्टीपल डिसीज एज अ मैं तो ये एक सिंपल सोयाबीन के रिलेटेड किया, आपके पास मल्टीपल प्लांट की मल्टीपल डिसीज का बहुत सारा डेटा है, और आपके पास वो ग्रीड भी है जिससे आप पर्टिकुलर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ आप ही
आगे इस चीज को ड्राइव कर रहे हो। हम तो एज अ बैक एंड में है कि आपको डीप लर्निंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए, लेकिन एज अ ड्राइव तो आप लोगों को ही करना है कि पूरा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को आगे आप लोगों को लेके जाना है। तो जितना भी डीप लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, प्लीज 15 डेज में बिल्कुल मैं मेरे एंड पे, हमारा पूरा टीम हम पूरे हमारे एंड पे आपको पूरा फोकस करेंगे कि बिल्कुल आप एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाओ, बस आगे इस चीज को ड्राइव आप कर पाओ। तो इट इज ऑल अबाउट माय एंड सर। Okay, thank you, sir. यस सर। Dear participants, if you have some doubt or questions, then you may ask to experts. एनी डाउट्स? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा एक मेजर डाउट ये था इस चीज के बारे में कि सर इसका सर इंडस्ट्रियल या सर जो किसानों के लिए सर इसका यूज क्या रहेगा? सर इंडस्ट्रियल और किसानों के लिए यही यूज़ है सर कि बेसिकली आपका ये जो मॉडल रहते हैं, आपने एज अ फार्मर के पास में इतना वो नहीं रहता है, I mean, उसे पर्टिकुलर नहीं पता है कि एक प्लांट में जो डिसीज आई है, इस डिसीज का साइंटिफिक नेम क्या है, इस डिसीज का जो आपका नेम है ये क्या है। आप तो जस्ट उसे आप एज अ बेसिक टर्म में वो समझ जाता है कि इसमें ये वाला वायरस हुआ होगा, वो मार्केट से जाके वो पेस्टिसाइड्स को ले लेता है। वो जो पेस्टिसाइड्स उसने लिया है, क्या उससे उसकी प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, कि क्या अगर इससे अच्छा कोई मार्केट में सजेस्ट कर देता कि ये पर्टिकुलर डिसीज अगर इसके ग्रीड में हुआ है तो इस पे ये वायरस आया है और ये वायरस के लिए बेस्ट पेस्टिसाइड ये है। तो हमें तो हमारा जो डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट है, बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि डीप लर्निंग में हम ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ह्यूमन ब्रेन जैसा वर्क कर रहा है कि एक इमेज को देख के, एक लीफ को देख के बता सकता है कि इसमें ये डिसीज है। हमारे से ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकता है एक मशीन, कि वो मशीन ज़्यादा अच्छे से बता सकता है क्योंकि वो लाखों करोड़ों डेटा पे ट्रेन हुआ है। उसे इस टाइप की डिसीज की आदत है कि उस टाइप का अगर उसके पास डिसीज आता है तो वो बता सकता है इजीली कि ये डिसीज का नाम ये है। जब हमें वो नेम सजेस्ट हो जाएगा तो हम उसके रिलेटेड किसान को बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा सा वो बता सकते हैं कि ये पेस्टिसाइड आप यूज कर सकते हो। यस सर। एक और डाउट था मेरा कि सर जैसे अगर हम सोयाबीन की ही बात करें तो सर सोयाबीन में डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल होती है सर। और सर आपने जैसे फ्लावरिंग स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज ये सब बता के रखा है, लेकिन सर सोयाबीन में सर वेरिएशन आ जाता है कि सर कुछ सोयाबीन आपकी रहती है 90 डेज वाली, कुछ सोयाबीन यस 105 यस डेज वाली, एग्जैक्टली। कुछ सोयाबीन आपकी 4 मंथ्स 120 डेज की रहती है। तो सर अगर जैसे अगर इसी में अपन जैसे डिफरेंट टाइप्स के सोयाबीन के अलग अलग पिक्स डालें तो यस। सर ये अगर डीप लर्निंग मशीन में डालेंगे तो सर वो एवरेज ले आएगा पूरा कंप्लीट एक का। तो उसमें सर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि अगर हमें जल्दी वाली का देखना है, जैसे फ्लावरिंग जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन अगर हमने लगाई लेट वाली सोयाबीन हो हम्म। या लेट मैच्योरिंग सोयाबीन लगाई हो सर, तो फिर उसके अंदर ये बता देगा कि या उसकी हाइट्स होती है या सर फ्लावरिंग जल्दी आ गई तो सर फिर उसमें प्रॉब्लम। इट इज ऑल अबाउट जस्ट अ यूआई पोर्शन जो मैंने आपको सामने शो किया, ये एक यूआई है इसका। बैकएंड में मैंने आपको एक सिंपल टर्म बोला है कि डीप लर्निंग में बस एक ही चीज हो रही है कि आप जिस टाइप का मुझे डेटा प्रोवाइड करोगे, जिस टाइप का डेटा, यानी कि अगर वो आपका 19 डेज की सोयाबीन का डेटा है तो मेरा मॉडल उस टाइप से ही ट्रेन करेगा कि ये 19 डेज की फ्लाइट के रिलेटेड वो डेटा कलेक्ट करेगा और 19 डेज की ही सोयाबीन के रिलेटेड ये एनालिसिस कर पाएगा। सो ये एक स्पेसिफिक डोमेन वाइज हो जाता है। जैसे आप लोग एक्सपर्ट हो, ये आप लोग मुझे जस्ट ये चीज़ें सजेस्ट करोगे कि सर ये डेटा है, इस डेटा के ऊपर हमें ट्रेन करना है कि नेक्स्ट टाइम ये अगर कोई भी डिसीज आती है तो ये आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है। सो जस्ट आपके एंड पे भी ये चीज़ें ये इतनी ऐसी क्लियर रहेगी कि आप जिस टाइप का मॉडल को डेटा दोगे, मॉडल तो एक मशीन है बैक एंड में, वो उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो अगर आप 19 डेज का सोयाबीन का जो डेटा है उसके रिलेटेड ट्रेन करवाना चाहते हो, सो आपको उसके रिलेटेड ही डेटा देना पड़ेगा ट्रेनिंग टाइम पे। ओके। एनी डाउट?
sir. Hello, sir. Ma'am, you are not audible properly. Hello? Hello. Yes. Hello, sir. Am I audible? Ma'am, your voice sir. are ma'am, your Hello. voice are breaking. Hello. Hello? Sir, my Yes, ma'am. question Now. is कि ये जो मॉडल्स, यस सर, ये जो मॉडल्स हम हमारे लैपटॉप में भी रन कर सकते हैं? यस मैम, ये इजीली आपके लैपटॉप में भी सेटअप किया जा सकता है, या तो हाँ। यस मैम। ओके, तो इसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वगैरह वो उसके बारे में भी आप बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, यस कैसे मैम, ये जो हमें पूरा कोडिंग करनी है, कैसे हम ये यस मॉडलिंग करेंगे? ओके यस, ये जो पूरा 15 डेज का बूट कैंप रहेगा, जिसमें आपको वो टेक्नोलॉजी को ही सिखाया जाएगा जो कि इस टाइप के मॉडल्स बनाने के लिए यूजफुल की है। आई मीन एज अ पाइथन प्रोग्रामिंग है आपका सबसे पहले करिकुलम में, कि पाइथन हमारे बैकएंड प्रोग्रामिंग है। उसके बाद में हम इसे समझने वाले हैं, कंप्यूटर विजन को समझने वाले हैं। जो कंप्यूटर विजन वाला पोर्शन है, कंप्यूटर विजन में आप इमेजेस के ऊपर वर्क करते हो, ठीक है, कैसे इमेज ओके एक डेटा बन जाता है। फिर उसके बाद में आप जैसे डीप लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स है कि कैसे आप मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो, और ये सब चीज़ें आगे के करिकुलम में रहती है। तो ये पूरा बूट कैंप का ओके फोकस ही यही है कि आप लोगों को ये पूरी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। और इट इज़ ऑल अबाउट मैम इंटरेस्ट की बात है कि जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट लोगे, ये आप उतना ज़्यादा इस चीज़ को ग्रो कर, यानी उतना ज़्यादा बहुत जल्दी चीज़ें आपके एंड पे भी क्लियर रहेगी और हमारे एंड पे भी आपको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। यस सर, यस मैम। क्योंकि हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर तो यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, लाइक आर स्टूडियो वगैरह, एनाकोंडा भी यूज किया यस हुआ है। तो अगर उसकी यस ऐसी मैम। एक्टिविटी सीख जाए तो वो ज्यादा अच्छा यस रहेगा। मैम। जैसे अब आपने बताया हैंड्स ऑन टाइप होगा, तो दैट विल बी गुड एंड यूजफुल फॉर अस। ओके, थैंक यू सर। यस मैम, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। यस मैम। Any other question? Any more participant want to ask the question to our experts? Okay. So, sir, shall we conclude today's session? ओके सर। Okay, okay. So, very thank you to our experts, Mr. Bhupen sir, and our another expert. And today's lecture is very informative, and very thank you, sir. And I request to all participants to join tomorrow at sharp 2:55 p.m. है ना? Before 5 minutes before the meeting, you should join. If any difficulties, then you can face and join before 5 minutes. Okay, thank you to all participants. Thank you once again to our experts. Thank you, sir. Now थैंक यू we सो मच। close this session, and if you have any query about related to this this session, then you may ask on the WhatsApp group also. Okay, sir. हेलो स्वतन सर, जी भूपेन सर बोलिए। सॉरी थोड़ा सा एक कॉल आ गया था। हाँ सर बताइए। भूपेन जी, we are now concluding the session, and very thank you. ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. So we will be meet tomorrow 3 p.m. sir. Thank ओके you ओके, to all एंड participants स्टूडेंट्स and कैन experts. आस्क देयर क्वेरी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। Okay, sir. I already informed to students, sir. अच्छा, ओके, थैंक यू। Okay. Thank you, participants. किधर? Thank you, sir. Thank you.